Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students and viewers. Welcome to week number 10 of the course Mobile Ad Hoc Network. आप लोगों को याद होगा वीक नंबर 9 में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के ऊपर डिस्कशन की थी. More specifically, in the previous week, we talked about some design issues that we need to consider while we are designing or proposing a solution for the transport layer of mobile ad hoc network. Let me remind you some of the issues that we studied in detail in the last week. Those issues were induced traffic and throughput unfairness. Another issue that we saw last week was separation of the congestion control, reliability and flow control mechanism offered by the TCP as a services. और इन्हीं issues के ऊपर आज हम बात करेंगे कि जो existing protocol है for the transport layer, how they keep reliability and congestion control separated from one another. यानी जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल है वो इन इश्यूज़ को किस तरह एड्रेस करते हैं, सो उसके ऊपर इस लेक्चर में हम बात करेंगे. Similarly, we saw some other design issues like power and bandwidth constraint जिसको हमने आगे रखना है जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए कोई प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं. इसके अलावा we saw कि how we misinterpret the concept of congestion, and then we saw another issue, and that is कि completely decoupling of the transport layer and the dynamic topologies, asymmetric link behaviors in the mobile ad hoc network, multipath routing, and also network partitioning and remerging. Besides, we also saw some issues that are related with the wireless communication itself, for example, signal attenuation and Doppler effect, multipath fading, etc. फिर हमने बात की थी डिज़ाइन गोल्स के ऊपर कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं, सो व्हाट आर द गोल्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड while designing any solution for the transport layer for mobile ad hoc network. उसके ऊपर हमने बात की थी. And finally, in the last lecture, we saw classification of the existing protocol for the transport layer of mobile ad hoc network. अगर आपको याद हो, हमने ट्रांसपोर्ट लेयर सॉल्यूशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, and those categories are TCP over mobile ad hoc network while other transport layer protocols. फिर जो TCP over mobile ad hoc network है, it further can be divided into 2 subcategories, and they are split approaches while end-to-end approaches. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे वो इन्हीं कैटेगरीज पे बेस करते हैं. For example, the first protocol that we are going to study today, and that is the split TCP protocol. Actually, it is a subcategory of TCP over MONET जिसको हम कहते हैं split approach, और इस कैटेगरी में सिर्फ यही एक प्रोटोकॉल है जिसको हम पढ़ेंगे. फिर जो सेकंड सब कैटेगरी है ऑफ द TCP over mobile ad hoc network protocols, उसको हम कहते हैं end to end approach. उसमें तकरीबन 3-4 प्रोटोकॉल्स को हम डिटेल्स से स्टडी करेंगे. एंड फाइनली द लास्ट अप्रोच विच इज़ कॉल्ड अदर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विच इज़ द सेकंड कैटेगरी, उसमें हम 1 या 2 प्रोटोकॉल्स को डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे इन दिस लेक्चर. सो आज का जो लेक्चर है वीक नंबर 10, इसको अगर आप देखें, इट इज़ अबाउट mobile ad hoc network transport layer protocols, right? So we will be talking about some of the existing protocol that have already been being proposed for the transport layer of mobile ad hoc networks.
So let us start with the first protocol, and that is the split TCP protocol. तो अगर कैटेगरी वाइज हम देखें, दिस इज़ इट केम अंडर द कैटेगरी ऑफ TCP ओवर मानेट, और फिर उसकी जो सब कैटेगरी है स्प्लिट अप्रोच, उससे ये बिलोंग करता है. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग. लास्ट वीक हमने स्प्लिट TCP प्रोटोकॉल को थोड़ा सा पढ़ा भी था. सो दिस इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट नाउ वी आर गोइंग टू वॉच एट द सेम प्रोटोकॉल फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. तो अगर पेपर के लिए आप लोगों ने इस प्रोटोकॉल को तैयार करना है, सो दैट इज़ अप टू यू कि आप वीक नंबर 10 से उसको प्रिपेयर करते हैं या वीक नंबर 9 से, या दोनों के कॉम्बिनेशन से. और हो सकता है कि आप लोग किसी एक से भी इसको प्रिपेयर ना करें, अपनी तरफ से सर्च करके प्रिपेयर करें, या हो सकता है आप लोग इसको स्किप कर लें. दैट इज़ अप टू यू. बट द कॉन्सेप्ट्स, इस प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट्स का समझना वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, बिकॉज इट रिजेंबल्स मच मोर लाइक द TCP प्रोटोकॉल. लेकिन जो TCP के इश्यूज़ हैं जिनको हमने लास्ट वीक पढ़ा भी था, उन इश्यूज़ का इफ़ेक्ट जो है वो नेटवर्क के परफॉर्मेंस पे पड़ता है, मोर स्पेसिफिकली थ्रूपुट पे उसका इम्पेक्ट पड़ता है. तो स्प्लिट TCP को डिज़ाइन करने का जो पर्पस था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि जो डिग्रेडेशन ऑफ थ्रूपुट है, जो कि रिलेटेड है विद द इंक्रीज पाथ लेंथ इन द मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस की डिग्रेडेशन होती है या थ्रूपुट डिग्रेड होता है पाथ लेंथ की वजह से, उसको किसी तरह से जो है वो एड्रेस किया जाए, उसको कम किया जाए, थ्रूपुट को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, डिग्रेडेशन को कम से कम किया जाए. और थ्रूपुट अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा सा मैंने बताया था कि इन जनरल टर्म्स थ्रूपुट इज़ द अमाउंट ऑफ अ सर्विस और अ प्रोडक्ट जो कि कोई कंपनी प्रोड्यूस करती है या डिलीवर करती है टू अ क्लाइंट विद इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. तो थ्रूपुट को आप कह सकते हैं कि इट एक्चुअली डिस्क्राइब द रेट एट विच अ कंपनी प्रोड्यूसेस और प्रोसेसेस इट्स प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, जो भी आप कह लें उसको हम थ्रूपुट कहते हैं इन जनरल. लेकिन चूंकि हम इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम थ्रूपुट को देखते हैं, सो थ्रूपुट इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ सक्सेसफुल मैसेज डिलीवरी ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम. और इसको हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड में, या इसको आप BPS भी कह सकते हैं. ठीक है. सो एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द थ्रूपुट, ताकि जो परफॉर्मेंस है वो नेटवर्क की अच्छी हो. राइट. सो जो स्प्लिट TCP का ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि थ्रूपुट को किसी तरह से इन्हेंस किया जाए, परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जाए किसी तरह से. ओके. सो एक तो प्रॉब्लम मानेट में ये है कि डिग्रेडेशन ऑफ थ्रूपुट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज पाथ लेंथ बिटवीन द नोड्स. और इसके अलावा एक और इशू भी है, and that is related with the unfairness among TCP sessions. This is something related with the आप कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो मैं क्लियर के साथ भी है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो अनफेयरनेस का प्रॉब्लम है, इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद द मेक क्लियर प्रोटोकॉल. फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं IEEE 802.11 प्रोटोकॉल की, स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई और वायरलेस लेन, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जो मैकेनिज़्म वो यूज़ करते हैं वहाँ पे डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं. कुछ ट्रैफिक को हम हाई प्रायोरिटीज़ देते हैं, कुछ को हम कम प्रायोरिटीज़ देते हैं. तो वहाँ पे जो है वो थ्रूपुट इफ़ेक्ट हो सकता है, या उसका इफ़ेक्ट जो है वो मानेट के ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल पे भी हो सकता है. ठीक है. सो अनफेयरनेस among TCP sessions, among priorities, due to priorities that we assign to different types of traffic,
There is also a problem, and it has an effect over the throughput of the system, तो जो स्प्लिट टीसीपी का ऑब्जेक्टिव है वो इन इश्यूज को एड्रेस करना है, और किस तरह वो एड्रेस करता है इन प्रॉब्लम्स को. इट एक्चुअली स्प्लिट द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑब्जेक्टिव्स इनटू टू टाइप्स, एक को कंजेशन कंट्रोल और दूसरे को एंड टू एंड रिलायबिलिटी. If you remember the services that the TCP offered to the customer, to the client, to the application layer, to the processes, वो कौन कौन सी हैं, वो डिफरेंट हैं. उन्हीं में से दो सर्विसेज हैं कंजेशन को कंट्रोल करना और एंड टू एंड रिलायबिलिटी, फ्लो को कंट्रोल करना, एरर को कंट्रोल करना वगैरह वगैरह. तो जो स्प्लिट टीसीपी है वो इन सर्विसेज को स्प्लिट करता है. दैट इज़ व्हाई इट इज कॉल्ड स्प्लिट टीसीपी. के टीसीपी के ऑब्जेक्टिव्स को ये स्प्लिट करता है इनटू टू पार्ट्स. Congestion control will be the responsibility of some nodes, while end-to-end reliability is going to be the responsibility of some other nodes. Okay, so congestion control से related जो services हैं, it is mostly हमें पता है कि there is a local phenomena. Local phenomena mean कि it actually is a result of the high contention competition and high traffic load in local regions. आप यहाँ से कैंट जा रहे हैं, रास्ते में पूरे रास्ते में कंजेशन नहीं है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी टाउन के करीब जो है यू टर्न की वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन है. सो दैट इज़ अ लोकल फिनोमिना. लोकली किसी एक रीजन में कंजेशन है जिसका इफ़ेक्ट आपके पूरे सिस्टम पे पड़ रहा है. ओके, तो अगर आप इस कंजेशन के जो इफ़ेक्ट है इसको आप लोकली एड्रेस कर सकते हैं, सो फाइन. और जो एंड टू एंड रिलायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल एंड टू एंड रिलायबिलिटी को आप कह सकते हैं कि द कंडीशन ऑफ द रोड जो है फ्रॉम योर सोर्स टू टिल द डेस्टिनेशन वो किस तरह का है, वेदर किस तरह का है, सिक्योरिटी किस तरह की है. सो एंड टू एंड रिलायबिलिटी आर थिंग्स लाइक दैट. ओके, सो जो कंजेशन कंट्रोल है स्प्लिट टीसीपी उसको लोकली हैंडल करता है, वाइल एट द सेम टाइम रिलायबिलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं नॉर्मली वो हमारे पास एंड टू एंड फिनोमिना है, एंड टू एंड रिक्वायरमेंट है. सो इट नीड एंड टू एंड सोल्यूशंस, एंड टू एंड एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, तो इसलिए इसके लिए एंड टू एंड रिलायबिलिटी के लिए नॉर्मली जो स्प्लिट टीसीपी है वो सोर्स नोड और एंड नोड की कम्युनिकेशन को, कोऑर्डिनेशन को, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस को सामने रखता है. एंड दैट इज़ ऑब्वियसली थ्रू द यूज़ ऑफ एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस दैट द सेंडर विल रिसीव फ्रॉम द डेस्टिनेशन. ठीक है, इसके अलावा स्प्लिटिंग द कंजेशन कंट्रोल और रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स, इसके अलावा जो स्प्लिट टीसीपी सॉल्यूशन है ये एक और काम भी करता है, एंड दैट इसके जो लॉन्ग टीसीपी कनेक्शंस हैं जो हमने पढ़ा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वो उसको शॉर्ट कॉन्केटिनेटेड टीसीपी कनेक्शंस में डिवाइड करता है. और इस कॉन्सेप्ट को हम स्प्लिट टीसीपी में कहते हैं सेगमेंट्स, या इसको आप जोन भी कह सकते हैं. और इसके अलावा स्प्लिट टीसीपी क्या करता है कि कुछ इंटरमीडिएट नोड्स को सेलेक्ट करता है विद इन द जोन्स, विद इन द सेगमेंट्स, जो कि जिनको हम प्रॉक्सी नोड्स कहते हैं, एंड दे आर एक्चुअली योर टर्मिनेटिंग पॉइंट्स ऑफ द शॉर्ट जोन्स of the segments that we have created, या जो shortest connection, जो short connections हमने establish किए हैं between the nodes, तो उनके ये terminating points हैं. यानी आप कह सकते हैं कि हर एक segment में आपके पास एक proxy node भी हो सकता है, और उस segment में कितने intermediate nodes हो सकते हैं, that is actually a design criteria जो कि बेस करता है number of nodes पे, and also the size of the segment and some other factors. ओके, सो इस स्प्लिट टीसीपी के अप्रोच को मज़ीद समझने के लिए वी आर गोइंग टू कंसिडर एन एग्जाम्पलरी सिनारियो विद द हेल्प ऑफ अ फिगर.
वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द स्प्लिट टीसीपी विल ऑपरेट, यानी उसके ऑपरेशन को समझने के लिए वी आर गोइंग टू कंसिडर फिगर। इस फिगर में आप देखेंगे कि वी हैव 3 सेगमेंट्स, जो कि स्प्लिट टीसीपी कनेक्शन जहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, एंड आवर सोर्स नोड इज़ 1 वाइल आवर डेस्टिनेशन नोड इज़ 15, और एक प्रॉक्सी नोड भी होगा जो कि टीसीपी के पैकेट्स को रिसीव करता है, उसके कंटेंट्स को रीड करता है और फिर उसको लोकल बफर में स्टोर करता है, और एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है टुवर्ड द सोर्स इफ इट इज़ द फर्स्ट प्रॉक्सी नोड, और इन केस इफ़ इट इज़ नॉट द फर्स्ट प्रॉक्सी नोड, तो ये जो प्रीवियस प्रॉक्सी नोड है उसको ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा अबाउट द रिसेप्ट ऑफ द टीसीपी पैकेट। इस लोकल एक्नॉलेजमेंट को हम कहते हैं लोकल एक्नॉलेजमेंट और लेक। एक्चुअली इसका जो ताल्लुक़ है वो एंड टू एंड डिलीवरी से या रिलायबिलिटी से नहीं है, क्योंकि ये लोकल फिनोमिना है, इसका ताल्लुक़ जो है वो कंजेशंस के साथ है, ठीक है। सो लोकल एक्नॉलेजमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एंड टू एंड एक्नॉलेजमेंट जहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन इन्वॉल्व हैं, जबकि जो लोकल एक्नॉलेजमेंट है इसमें आपके इंटरमीडिएट जो प्रॉक्सी नोड्स हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं। हो सकता है कि ये बिटवीन 2 प्रॉक्सीज़ हो, या हो सकता है कि ये सोर्स और फर्स्ट प्रॉक्सी के दरमियान ये कम्युनिकेशन हो। ओके, लेट अस गो टू द एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव a source node which is 1 and we have a destination node which is 15 in this case। ये जो लेजेंड्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि कौन से लिंक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेटवर्क लिंक्स जो नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, जो डैश लाइंस हैं, डैश डैश डैश, दे रिप्रेजेंट द नेटवर्क लिंक्स। और जो आपके पास सॉलिड लाइन है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, हियर वी हैव द सॉलिड लाइन, it actually represent the TCP flow। तो अगर आप देखें the flow is from node 1 towards 5, then towards 4, then towards 8, then towards 13 and finally the destination node 15। so यहाँ पे आप TCP के flow को देख सकते हैं, right? this is a TCP session जो कि established है already। okay, and we have another type of flow, ये जो dash dash with arrow है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम 15 टूवर्ड 13, फ्रॉम 13 टूवर्ड्स 4 एंड फ्रॉम 4 टूवर्ड्स 1। दीज आर द लोकल एक्नॉलेजमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि 2 प्रॉक्सीज़ के दरमियान भी हो सकती हैं जस्ट लाइक दिस, या एक प्रॉक्सी और सोर्स नोड के दरमियान भी हो सकती है, या डेस्टिनेशन और प्रॉक्सी के दरमियान भी पॉसिबल है। And the nodes, shaded nodes, they are actually represent the proxy nodes। so in this case we have 2 proxy nodes, they are 4 and 13। यानी हमने इस नेटवर्क को सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। एक सेगमेंट में आपके पास एक प्रॉक्सी है, दैट इज़ 4, दूसरे सेगमेंट में आपके पास दूसरा प्रॉक्सी नोड है, दैट इज़ 13। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एंड टू एंड TCP एक्नॉलेजमेंट भी है, एंड दैट इज़ द डॉट 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 विथ एरो। सो यू कैन सी हियर डॉट डॉट एरो, दैट इज़ लाइक एंड टू एंड रिलायबिलिटी। सो यू सी हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्चुअली डिवाइड कर रहे हैं। कंजेशन कंट्रोल लोकल फिनोमिना which has been shown with the help of a dash arrow lines, while a reliability which is end to end approach or solution, उसको हमने शो किया है with the help of dotted arrows, and that is like source node, between source node and destination node, which in this case is node 1 and node 15। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी हैं about the split TCP approach के कुछ और काम भी हमने करने हैं, एंड दैट इज़ के जो आपके पास कंट्रोल विंडो है जो कि TCP सेंडर उसको यूज़ करता है, उसको भी हमने 2 हिस्सों में या 2 सब विंडोज़ में डिवाइड करना होता है। एक विंडो कंजेशन के लिए होगी और एक एंड टू एंड विंडो होगी। जो कंजेशन विंडो है, इट एक्चुअली आपको पता है कंजेशन जो विंडो है उसका साइज़ कम ज़्यादा होता रहता है बेस्ड ऑन द कंजेशन और अदर फैक्टर्स। तो जो कंजेशन विंडो है, it will change according to the
rate of the arrival of the local acknowledgement from the next proxy. और जो आपके पास एंड टू एंड विंडो है, इट विल एक्चुअली अपडेट इट्स साइज बेस्ड ऑन द अराइवल ऑफ एंड टू एंड एक्नॉलेजमेंट, जिस तरह के नॉर्मली ट्रेडिशनल टीसीपी अप्रोच में हमारे पास होता है। ओके, इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है कि ट्रांसमिशन विंडोज़ जो कि हम सेंडर पे यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो प्रॉक्सी नोड्स हैं which in this case are node 4 and 13, they will also maintain a congestion window. उनका काम सिर्फ कंजेशन को हैंडल करने के साथ होता है, सो दे वुड नीड कंजेशन विंडो। और इस विंडो का काम होगा कि गवर्न करे द सेगमेंट लेवल ट्रांसमिशन रेट को। कहीं पे कंजेशन ज़्यादा है तो कम करो, कंजेशन कम है तो रेट को बढ़ाओ एंड सो ऑन। लेकिन इनका जो काम है, अगर आप देखें तो जो प्रॉक्सी नोड्स हैं, दे आर नॉट डीलिंग विद द एंड टू एंड विंडोज़ एंड दे डू नॉट यूज़ इट, द एंड टू एंड विंडोज़ को वो यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्प्लिट टीसीपी अप्रोच। अगर हम एडवांटेजेस को देखें तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिस तरह के ऑब्जेक्टिव में क्लेम किया गया था कि ये जो अप्रोच है इट विल एक्चुअली इम्प्रूव द थ्रूपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद द फर्स्ट पॉइंट, के थ्रूपुट के अलावा जो फेयरनेस है among the TCP sessions या different types of links, उसको भी जो थ्रूपुट फेयरनेस है, इसको भी ये इम्प्रूव करेगा। सो फेयरनेस एंड थ्रूपुट आर द टू फैक्टर्स दैट द स्प्लिट TCP विल एड्रेस, या उसको ये इम्प्रूव करेगा। अगर हम थ्रूपुट को देखें, थ्रूपुट इम्प्रूवमेंट, सो दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज स्प्लिट टीसीपी में हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली रिड्यूस द पाथ लेंथ ऑफ इफेक्टिव ट्रांसमिशन एंड दैट इज़ पॉसिबल। हम क्या करते हैं, हम आपने देखा होगा कि सिनारियो में हमने क्या किया है, उसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है या सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सो अगर आप देखें तो सोर्स नोड से इस प्रॉक्सी तक मैसेज को डिलीवर करना, उसकी लेंथ कम है as compared with the length between the nodes 1 and 15, वहाँ पे लेंथ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली थ्रूपुट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं इफ़ वी रिड्यूस द ट्रांसमिशन पाथ बिटवीन द नोड्स एंड दैट इज़ अचीव्ड। कि हम क्या करते हैं कि हम पूरे सिनारियो को या पूरी जो टोपोलॉजी है उसको डिफरेंट जोन्स में या सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। और जो नॉर्मल ट्रेडिशनल टीसीपी है उसमें थ्रूपुट डिग्रेड्स होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पाथ लेंथ। सो स्प्लिट टीसीपी का जो अप्रोच है, इट एक्चुअली शॉर्टर द कॉन्केटिनेटेड पाथ सेगमेंट्स, और ईच जो सेगमेंट है दैट एक्चुअली ऑपरेट इन इट्स ओन ट्रांसमिशन रेट एंड हेंस द थ्रूपुट इज़ इंक्रीज। और एंड रिजल्ट जो होगा, इसका जो फेयरनेस है इन द सिस्टम वो भी हमारे पास इम्प्रूव होती है। सिंस इन स्प्लिट टीसीपी जो पाथ सेगमेंट लेंथ है इट इज़ शॉर्टर देन एंड टू एंड पाथ, जिस तरह मैंने बताया। सो इसका जो इफ़ेक्ट है वो मोबिलिटी पे भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे पास मोबाइल एड-हॉक नेटवर्क है उसकी जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मोबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबल मोबिलिटी ऑफ द नोड्स हैं, ओके, जिसका इफ़ेक्ट जो है वो थ्रूपुट पे पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नोड मूव कर रहे हैं तो जो टोपोलॉजी है वो चेंज हो रही है, कनेक्शन आपके जो हैं वो जो इस्टेब्लिश कनेक्शन है वो आपके पास इफ़ेक्ट हो सकते हैं, फिर उसको री इस्टेब्लिश करना, पाथ को रिक्रिएट करना और फिर पैकेट को दोबारा रिट्रांसमिट करना, तो वहाँ पे जो इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस पे वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मोबाइल एड-हॉक नेटवर्क में। लेकिन उस कैरेक्टरिस्टिक को, मोबिलिटी के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम जोन्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो अगर दो नोड्स मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दे आर मूविंग इन द सेम जोन, तो उस केस में जो आपके एग्जिस्टिंग सेशंस हैं वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट टीसीपी अप्रोच की वजह से थ्रूपुट को तो इम्प्रूव कर रहे हैं, फेयरनेस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो मोबिलिटी का इम्पैक्ट है, मोबिलिटी का जो इफ़ेक्ट है उसको भी हम कम कर रहे हैं। सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज। While on the other side, some disadvantages of the split TCP approach, they are mentioned here. The first disadvantage is that it
requires modification to the existing TCP protocol. जो आपके पास प्रोटोकॉल है TCP का, चूँकि ये प्रोटोकॉल जो हमने कैटेगराइजेशन में देखा था कि इट इज़ एक्चुअली अ कैटेगरी दैट इज़ कॉल्ड TCP ओवर मानेट, यानी हम TCP को अमेंड कर रहे हैं ताकि उसको हम अलाउ कर सकें कि वो मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में काम कर सके. सो एक्चुअली यू हैव टू मॉडिफाई द TCP प्रोटोकॉल और इट्स फंक्शनैलिटीज़ और इट कंट्रोल मैसेजेस, राइट. सो दैट इज़ वन डिसएडवांटेज कि आपने TCP में जो है वो हाथ पाँव मारने हैं. इसके अलावा एंड टू एंड कनेक्शन हैंडलिंग ऑफ ट्रेडिशनल TCP इज़ वायोलेटेड. रिमेंबर, ट्रेडिशनल TCP हैज़ एंड टू एंड सेमेंटिक where the intermediate nodes do not process the TCP packets. That is, in case of a traditional TCP approach, end-to-end semantics के साथ, पैकेट्स के साथ, कंट्रोल मैसेजेस के साथ इंटरमीडिएट नोड्स का कोई लेना देना नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी है? एंड टू एंड मीन सोर्स और डेस्टिनेशन की है. लेकिन स्प्लिट TCP में आपने देखा इंटरमीडिएट नोड्स, मोर स्पेसिफिकली द प्रॉक्सी नोड्स, दे नीड टू प्रोसेस द TCP पैकेट्स. उनको प्रोसेस भी करते हैं, उनको स्टोर भी करते हैं, उनको फिर जो है बफर में रखते हैं और फिर उसको रिट्रांसमिट भी करते हैं वगैरह वगैरह. सो इन एडिशन टू द एंड टू एंड सिमेंटिक, इस अप्रोच की वजह से कि हम क्या कर रहे हैं, एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ TCP को वायोलेट कर रहे हैं, हम इंटरमीडिएट नोड्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो अप टू सम एक्सटेंट सिक्योरिटी स्कीम्स पे भी पड़ सकता है. बिकॉज आपको पता होगा कि हर एक लेयर पे इनकैप्सुलेशन होती है. ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे हमारे पास नेटवर्क लेयर है, वहाँ पे IP पेलोड जो है, वहाँ पे इंक्रिप्शन है, तो उसको फिर आप यूज़ नहीं कर सकते इफ़ यू आर यूजिंग स्प्लिट TCP. तो सिक्योरिटी पे भी इसका एक एंड इफेक्ट है. और द लास्ट डिसएडवांटेज इज़ फेलियर ऑफ प्रॉक्सी नोड्स कैन लीड टू थ्रूपुट डिग्रेडेशन. ओके, हम थ्रूपुट को के डिग्रेडेशन को एक साइड पे हम उसको कम कर रहे हैं, थ्रूपुट को हम इन्हेंस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रॉक्सी नोड्स. लेकिन व्हाट विल हैपन इफ द प्रॉक्सी नोड फेल्स? यू विल हैव टू वेट फॉर द प्रॉक्सी नोड टू अप अगेन, और यू हैव टू सेलेक्ट अनदर प्रॉक्सी नोड. जो अदर प्रॉक्सी नोड आप सेलेक्ट करेंगे उसकी सिलेक्शन कैसे होगी वगैरह वगैरह. सो in case of a failure of a proxy node, जो आपके frequent path जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, they will break. ओके, सो आपको नए पाथ्स ढूंढने होंगे, नए नोड्स सेलेक्ट करने होंगे. तो इसका जो एंड इफेक्ट है वो परफॉर्मेंस पे पड़ सकता है, थ्रूपुट डिग्रेड हो सकती है. सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट प्रोटोकॉल that is called the split TCP. Now we are going to move to our second protocol, और जो हमारा second protocol है ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, उसको हम कहते हैं फीडबैक बेस्ड TCP. इसको आप FTCP भी कह सकते हैं या इसको आप TCP-F भी कह सकते हैं. F को आगे लगाएं, पीछे लगाएं, डजेंट मैटर. लकट सर तक अकेले और लंगे तक से फ़र्क न पड़ोजी. ठीक था. ओके, सो समवेयर यू विल सी फीडबैक बेस्ड TCP विद F इन फ्रंट ऑफ TCP, और कहीं पे आपको F जो है वो बाद में मिलेगा. सो डजेंट मैटर. फीडबैक, चूँकि ये हमारे पास बहुत ही पुराने प्रोटोकॉल्स हैं, राइट. एक्चुअली जो मानेट जो हम पढ़ रहे हैं इट इज़ लाइक आउटडेटेड. आजकल जो है मोबाइल एड हॉक नेटवर्क की जो सब कैटेगरीज हैं उस पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं. मिश नेटवर्क्स, वायरलेस मिश नेटवर्क्स, व्हीकुलर नेटवर्क, फ्लाइंग एरिया नेटवर्क, ड्रोन नेटवर्क्स, WSN, बॉडी एरिया नेटवर्क, अंडर वाटर सेंसर नेटवर्क, अंडरग्राउंड सेंसर नेटवर्क. सो दीज आर हॉट फील्ड्स. बट एनीवे, आपको जो है वो क्लासिकल चीज़ें भी सीखनी चाहिए in order to work with the more advanced fields or subfields. So Manet is like the mother, a grandmother of all these subfields जो कि मैंने अभी आपको बताए. So feedback based protocol, it is actually a TCP over Manet protocol itself. लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि TCP over Manet की कैटेगरी को हम further to
कैटेगरीज सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज स्प्लिट अप्रोच. जो आपने स्प्लिट टीसीपी प्रोटोकॉल पढ़ा, दैट इज़ एक्चुअली अ स्प्लिट अप्रोच. अभी जो आप प्रोटोकॉल्स पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ आल्सो टीसीपी ओवर मानेट, लेकिन इट बिलोंग्स टू द सेकंड सब कैटेगरी जिसको हम कहते हैं एंड टू एंड अप्रोच. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इट विल फॉलोज एन एंड टू एंड अप्रोच. ओके, सो इसका मतलब है कि दिस इज़ द सेकंड सब कैटेगरी ऑफ टीसीपी और मानेट प्रोटोकॉल्स. ये जो प्रोटोकॉल है इट proposes modification to the traditional TCP. Why? For improving performance of the TCP in mobile ad hoc network. TCP बनाया गया है ट्रेडिशनल नेटवर्क्स के लिए, हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं मानेट में. परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, तो उस परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन से बचने के लिए हम TCP को मॉडिफाई कर रहे हैं. स्प्लिट TCP में भी हमने यही किया, TCP को मॉडिफाई किया. जो फीडबैक या FTCP या TCP-F प्रोटोकॉल है वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, वी नीड टू मॉडिफाई द ट्रेडिशनल TCP प्रोटोकॉल in order to make it compatible with mobile ad hoc network. It actually uses a feedback based approach. इसका मतलब है कि जो आपके पास नोड्स हैं वो नोड्स अपना फीडबैक सोर्स नोड के साथ शेयर करेंगे. जो आपके इंटरमीडिएट्स नोड हैं वो अपना फीडबैक पैकेट्स की डिलीवरी से रिलेटेड, कंजेशन से रिलेटेड वो अपना फीडबैक, लिंक ब्रेकेज से रिलेटेड अपना फीडबैक वो सोर्स के साथ शेयर करेंगे. इसके लिए जो TCP-F है इट एक्चुअली रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ अ रिलायबल लिंक लेयर एंड रूटिंग प्रोटोकॉल दैट कैन प्रोवाइड फीडबैक टू द TCP सेंडर अबाउट द पाथ ब्रेक. जिस तरह मैंने आपको बताया कि फीडबैक बेस्ड अप्रोच है, इंटरमीडिएट नोड्स जो हैं वो सेंडर को इन्फॉर्म करेंगी. सो ऑब्वियसली दिस प्रोटोकॉल विल रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ द नेटवर्क लेयर, more specifically a routing protocol as well as the MAC layer for finding the path breaks due to node mobilities or other factors. path जो links हमारे पास break होते हैं उसकी information TCP-F के sender को बताना. okay. जो routing protocol है जिसका feedback इसको चाहिए, it will expect it to repair the broken path within a reasonable amount of time. यानी ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है रूटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर और उसको कह रहा है कि हे अगर दरमियान में टूवर्ड द डेस्टिनेशन कोई पाथ ब्रेक है, उस ब्रेक पाथ को जो है रिपेयर करना या अल्टरनेटिव पाथ को ढूंढना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. रूटिंग प्रोटोकॉल को ये कह रहा है और ये काम आपने रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में करना है क्योंकि मुझे थ्रूपुट इंक्रीज करना है. आई डोंट वांट टू वेट लॉन्ग फॉर रिपेयर ऑफ द पाथ. आपने ये काम जल्दी करना है ताकि एंड परफॉर्मेंस हमारी अच्छी रहे, क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या इन अदर वर्ड्स थ्रूपुट डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करने के लिए जो TCP-F है वो एक मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा. वो मैकेनिज़्म क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. राइट, सो जो TCP-F है इट विल एक्चुअली मिनिमाइज द थ्रूपुट डिग्रेडेशन जो कि हैं किस वजह से वो फ्रीक्वेंट पाथ ब्रेक्स हमारे पास आते हैं, बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द नोड्स इन मानेट. यानी मोबिलिटी से पाथ ब्रेक्स और पाथ ब्रेक्स से थ्रूपुट डिग्रेडेशन होगी. तो इसको एड्रेस करने के लिए TCP-F इज़ देयर इन द ग्राउंड. तो ड्यूरिंग अ TCP सेशन इन मोबाइल एड हॉक नेटवर्क there are chances or there could be several path breaks which will result in considerable packet loss as well as path re-establishment delay or retransmission delay. तो इस प्रोटोकॉल में जैसे ही कोई पैकेट लॉस डिटेक्ट होता है, जो सेंडर है इन द TCP सेशन इट विल इन्वॉक्स द कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम जो TCP में होता है. ठीक है,
अगर नेटवर्क में कंजेशन है तो नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम जो है वो वेकअप स्टेट में आएगा और वो क्या करेगा, अपना काम करेगा, जो कि नॉर्मली होता है कि एक्सपोनेंशियली बैक ऑफ मैकेनिज़्म को वो फॉलो करते हैं, रीट्रांसमिशन टाइमर्स को वो यूज़ करते हैं और कंजेशन विंडो की साइज़ को कम करते हैं. सो ऑल दीज आर इश्यूज जो कि हमने टीसीपी में पढ़ी थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट टीसीपी इन जनरल, कि किस तरह वो कंजेशन को हैंडल करते हैं. हमने डिफरेंट मैकेनिज़्म भी पढ़े थे. सो उन्हीं मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हुए इट विल हैंडल द सिचुएशन. ओके, इस प्रोटोकॉल में लाइक द प्रीवियस वन जो आपके पास इंटरमीडिएट नोड्स हैं, जैसे ही वो कोई पाथ ब्रेक डिटेक्ट करते हैं, दे विल एक्चुअली ओरिजिनेट्स और क्रिएट अ पैकेट जिसको हम कहते हैं रूट फेलियर नोटिफिकेशन और RFN इन शॉर्ट. जो आपके पास TCP सेंडर है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो उन तक पहुंचती हैं बाय यूजिंग द TCP पैकेट्स फॉरवर्डेड बाय द सोर्स, राइट. जो आपके पास नोड्स हैं, it actually maintains information about all the जो आपके पास इंटरमीडिएट नोड्स हैं, it will contain information or maintain information about all the RFNs. RFNs mean root failure notifications. It has originated so far. यानी ये इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा. और जो इंटरमीडिएट नोड्स इस RFN पैकेट को फॉरवर्ड करता है, इट विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जो रूट फेलियर है वो अकर हो चुका है. सो ये क्या करेगा, इट विल अपडेट इट्स रूटिंग टेबल अकॉर्डिंगली कि कौन कौन से लिंक्स मेरे पास अवेलेबल है, कौन से ब्रेक हैं. और जो लिंक्स ब्रेक हैं ये नोड अवॉइड करेगा फॉरवर्डिंग एनी पैकेट्स ऑन दैट रूट. रूट नहीं है तो पैकेट में क्यों फॉरवर्ड करूँ, पैकेट आप फॉरवर्ड करेंगे तो वो लॉस होंगे, डेस्टिनेशन तक या नेक्स्ट नोड तक वो नहीं पहुँच सकते. So instead of sending those packet, ये क्या करता है, avoid करता है forwarding of the packets. So if any of the intermediate nodes जो कि RFN पैकेट को रिसीव करता है और उसके पास कोई अल्टरनेटिव रूट है टू द सेम डेस्टिनेशन, उस केस में ये इंटरमीडिएट नोड का क्या करेगा, it will actually discard the RFN packet. Why? Because उसको पता है कि RFN पैकेट में क्या है, ये मुझे बताएगा कि जो लिंक फेलियर है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो मुझे पता है कि वो लिंक अवेलेबल नहीं है, बट आई हैव एन अल्टरनेटिव रूट अवेलेबल. तो ये उस पैकेट को इग्नोर करेगा और अपने पैकेट को अल्टरनेटिव रूट के ज़रिए फॉरवर्ड करेगा, या जितने भी डेटा पैकेट्स हैं फर्दर जो इनके पास है वो उसको फॉरवर्ड करेगा ऑन द अल्टरनेटिव रूट, एंड थस रिड्यूसिंग द कंट्रोल ओवरहेड. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली कंट्रोल ओवरहेड को मिनिमाइज कर रहे हैं इन द रूट रिकॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस. अदरवाइज इट विल फॉरवर्ड द RFN टूवर्ड द सोर्स नोड और फिर वो प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा. सो उस प्रोसेस से बचने के लिए, कंट्रोल ओवरहेड को कम करने के लिए हम अल्टरनेटिव रूट्स के इफ़ अ नोड हैव उसको हम यूज़ कर रहे हैं. Okay, so by using these mechanism, TCP/IP will try to minimize the throughput degradation. Okay, so हमने बात की about the RFN packets जो कि intermediate nodes जो हैं originate करते हैं, which is a special packet. It will inform the node about a root failure, जिस तरह नाम से ही जाहिर है. और ये पैकेट हम नॉर्मली रूट करते हैं टूवर्ड द सेंडर, जिन्होंने TCP सेशन को क्रिएट किया है या जो पैकेट को या डेटा को सेंड करने जा रहा है. और जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं जो कि इस स्पेशल पैकेट को जनरेट करता है, इस प्रोटोकॉल में हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं FP नोड या फेलियर पॉइंट, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली द नोड जहाँ से आगे जो है वो रूट अवेलेबल नहीं है, जैसे जो है वो RFN नोटिफिकेशन जो है वो ओरिजिनेट किया था.
ऑन द अदर साइड जो आपके पास टीसीपी सेंडर है, जैसे ही इसको RFN पैकेट रिसीव होता है, सेंडर क्या करेगा, इट विल गोज टू अ स्टेट, और उस स्टेट को हम कहते हैं स्नूज। स्नूज इज़ लाइक टेकिंग अ नैप। जिस तरह स्टूडेंट क्लास के अंदर लेक्चर के दौरान थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, फिर उसको जगाने के लिए टीचर को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सो दैट इज़ लाइक अ स्नूज, लाइक अ नैप। टीसीपी सेंडर पैकेट सेंड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज द लिंक इज़ नॉट अवेलेबल। जब तक लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, ये किस मोड में चला जाता है? नेप। एंड रिमेंबर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, द नेप इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकली इन सम केसेस। फॉर एग्जांपल इफ़ यू जो आपके नोड्स हैं उनके रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं, तो उस केस में ये नेप बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी ट्रांसमिशन नहीं होगी, आपके पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे, बट स्टिल यू आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, सो देयर इज़ अनदर लॉस। सो उससे बचने के लिए हम उसको नेप कर देते हैं टीसीपी सेंडर को। नाउ अ क्वेश्चन इज़ कि ये जो रूट फेलियर है ये कितने टाइम तक होगा? सो ये जो टाइम है, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द प्रोटोकॉल, रूटिंग प्रोटोकॉल मोर स्पेसिफिकली, कि कितनी जल्दी वो इस इशू को हैंडल कर सकता है, इस फेलियर ऑफ लिंक को, ऑफ रूट को ये हैंडल कर सकता है, अल्टरनेटिव रूट को कितनी जल्दी वो फाइंड कर सकता है। सो रूटिंग प्रोटोकॉल। इसके अलावा ये डिपेंड करता है नेटवर्क के साइज़ पे। स्मॉल साइज़ है, फ्यूअर नोड्स हैं, द टाइमर इज़ डिफरेंट। लार्जर नेटवर्क है, मोर नोड्स हैं, तो उस केस में द नेटवर्क साइज इज़ डिफरेंट, सो द टाइम टू रिकवर द रूट फेलियर इज़ डिफरेंट। और इसके अलावा नेटवर्क के डायनामिक्स पे भी हैं कि जो मूवमेंट है नोड्स की, जो सिनारियो है जहाँ पे ये मानेट इम्प्लीमेंटेड है वो किस तरह की, उसकी डायनामिक क्या है, वगैरह वगैरह अदर फैक्टर्स भी हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब अनदर क्वेश्चन इज़ कि ओके, आपने सेंडर को स्नूज कर लिया, उसको आपने नेप के लिए भेज दिया। इस स्टेट में क्या होता है? जो सेंडर होता है इट एक्चुअली स्टॉप्स सेंडिंग एनी मोर पैकेट्स टू द डेस्टिनेशन बिकॉज दैट इज़ यूजलेस। जिस तरह मैंने आपको बताया, पाथ अवेलेबल नहीं है, आप पैकेट सेंड करेंगे तो वो लॉस होंगे। इसके अलावा दूसरा काम इस स्टेट में क्या होता है कि जो सेंडर है इट एक्चुअली कैंसल्स ऑल द टाइमर्स। टाइमर्स की डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो टीसीपी में जब आप कोई पैकेट सेंड करते हैं तो आप टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं, और टाइमर इसलिए होता है कि आपको इतने टाइम में उसका एक्नॉलेजमेंट, उस मैसेज की एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, सो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि पैकेट नेटवर्क में कंजेशन है, पैकेट डेस्टिनेशन को नहीं मिल रहा, तो आप उसको रीट्रांसमिट करते हैं, टाइमर को दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस स्नूज स्टेट हम क्या कर रहे हैं, हम टाइमर को भी कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पैकेट सेंड नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग द टाइमर। इसके अलावा कंजेशन विंडो के साइज़ को हम फ्रीज़ कर लेते हैं, रीट्रांसमिशन टाइमर को हम फ्रीज़ कर लेते हैं, और जो है हम एक और टाइमर सेट करते हैं, दैट इज़ द रूट फेलियर टाइमर, के ये कितने टाइम में जो प्रॉब्लम है वो रूटिंग प्रोटोकॉल हमारे लिए सॉल्व करके देता है। तो जैसे ही ये जो टाइमर आपने सेट की है रूट फेलियर वाली, जैसे ही ये टाइमर एक्सपायर हो जाए, जो टीसीपी सेंडर्स हैं इट विल चेंज इट्स स्टेट। इसका मतलब है कि जो रूट फेलियर का इशू था वो रिजॉल्व हो गया। नाउ इट्स चेंज टू गो टू द बैकअप। जिस तरह एक टीचर किसी स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा है कि ही इज़ नेपिंग इनसाइड द क्लास, वो सो रहा है, तो आफ्टर सम टाइम टीचर उस स्टूडेंट को जगाएगा कि बस करे, उठ जाए, आपने काफ़ी आराम कर लिया है। तो इन अ सिमिलर वे हम टीसीपी सेंडर को उसके स्टेट को चेंज करते हैं फ्रॉम स्नूज स्टेट टू कनेक्टेड स्टेट। अब कनेक्टेड स्टेट क्या है? दैट इज़ अनदर स्टेट जिसमें जो सेंडर है वो ट्रांसमिशन कर सकता है। इस प्रोटोकॉल के ऑपरेशन को समझने के लिए लेट अस टेक अ ग्राफिकल एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव 3 डिफरेंट केसेस A, B एंड C। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट A।
How many nodes do we have here? We have 4 nodes, A, B, C and D. A को आप सोर्स कह लें, D को आप डेस्टिनेशन कह लें, B, C को आप इंटरमीडिएट नोड्स कह लें. कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं? TCP/F. कनेक्शन या सीजन TCP सेशन किसके दरमियान है? A और D के दरमियान. सो इन द फर्स्ट केस TCP स्टेट कौन सा है? कनेक्टेड स्टेट में है, बिकॉज कोई पाथ ब्रेक नहीं है, नॉर्मल कम्युनिकेशन हमारी हो रही है. सो TCP सेशन इज सेटअप बिटवीन नोड A एंड नोड D, और पाथ हमारे पास क्या है? A से B, B से C एंड C से D, as shown in the A. Okay, now move to the second. When the intermediate link between C and D fails, goes down, break, उस केस में जो नोड C है, इट विल ओरिजिनेट अ पैकेट, और उस पैकेट को जिस तरह मैंने ऊपर बताया उसको हम कहते हैं RFN. ये वो नोटिफिकेशन है अबाउट द फेलियर ऑफ द रूट, और उसको वो फॉरवर्ड करेगा इन द ऑन द रिवर्स पाथ टू द सोर्स नोड, विच इन दिस केस इज़ A. तो यहाँ पे आप देखिए B को, हमारे पास जो C और D के दरमियान जो लिंक है, जो पाथ है, वो ब्रेक है. अब ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट नोड है C, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये B को इन्फॉर्म करे और B फिर फाइनली सोर्स हमारे A को इन्फॉर्म करे बाय यूजिंग अ स्पेशल पैकेट दैट इज़ कॉल्ड RFN. सो ये नोटिफिकेशन C से B और फिर B से A, दैट इज़ वन थिंग. अब जैसे ही A को पता चला कि लिंक इज़ नॉट अवेलेबल, पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, तो वो किस स्टेट में चला जाएगा? कनेक्टेड से स्नूज स्टेट पे वो चला जाएगा. नाउ लेट अस कंसीडर द C. ये पाथ जो है वो रूटिंग प्रोटोकॉल ने इसको रीस्टैब्लिश कर लिया या कोई और पाथ इसने ढूंढ लिया. इस केस में रीस्टैब्लिश है, रिकॉन्फिगर है. सो अगेन हम एक और पैकेट को यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड RRN, and there is like a re-establishment notification, root re-establishment notification. RRN stand for root re-establishment notification. That is another control packet that is sent to node A, which is the source at the TCP state, is updated back to the connected state. यहाँ पे दो काम हो रहे हैं. सबसे पहले हम RRN पैकेट को सेंड कर रहे हैं इन रिवर्स ऑर्डर टुवर्ड द सोर्स, और फिर हम दूसरा काम क्या कर रहे हैं? TCP के स्टेट को स्नूज से हम दोबारा कनेक्टेड में लेके आ रहे हैं. अब TCP कनेक्टेड स्टेट में आ गया तो वो क्या करेगा? पैकेट्स को वो सेंड कर सकता है. सो दिस इज़ अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोटोकॉल. और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एज सून एज द सोर्स नोड रिसीव द RRN पैकेट, ये क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा ऑल द पैकेट्स जो कि इसके बफर में हैं, क्योंकि इसने पैकेट बफर्स किए थे कि जैसे ही नेटवर्क बेक होगा इनटू द नॉर्मल स्टेट, मैं इन पैकेट्स को जो है वो सेंड करूँगा. दिस कैन आल्सो टेक केयर ऑफ ऑल द पैकेट्स दैट वाज नॉट एक्नॉलेज और लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसिट ड्यूरिंग द पाथ ब्रेक. चूँकि पाथ ब्रेक की वजह से हमारे पास कुछ पैकेट्स या एक्नॉलेजमेंट भी लॉस हो सकती हैं, सो ये मैकेनिज़्म उसको भी जो है वो हैंडल कर सकता है. ओके, लास्ट थिंग्स दैट नीड टू रिमेंबर इज़ के जो रूट failure time है, that is actually set after receiving the RFN packet. ये हम यूज़ करते हैं to ensure जो आपका सेंडर है it does not remain in the snooze state indefinitely or forever. ठीक है, ये जो टाइमर हम स्टार्ट करते हैं, आप सेंडर स्लीप मूड में चला गया, नेप मूड में चला गया, स्नूज मूड में चला गया, अब उसको दोबारा वेकअप भी करना है, तो उसके लिए हम टाइमर स्टार्ट करते हैं जिसको हम रूट फेलियर टाइमर कहते हैं. अगर वो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, सो द नोड इज़ गोइंग टू बी इन दैट स्टेट फॉरएवर. तो जैसे ही वो टाइमर एक्सपायर होता है, सेंडर गोज़ बैक टू द कनेक्टेड स्टेट, और उसमें क्या करता है? अपने जो चीज़ें हमने फ्रीज़ की थी उसको हम रीएक्टिवेट करते हैं. जो टाइमर्स हमने फ्रीज़ किए थे, जो विंडो साइज़ हमने फ्रीज़ किया था, उसको हम दोबारा जो है वो रीएक्टिवेट करते हैं. एंड द सेंडर स्टार्ट सेंडिंग द बफर्ड पैकेट, क्योंकि इसको पैकेट्स मिलते हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, तो वो बफर में होते हैं, तो उसको बफर पैकेट को दोबारा सेंड करना और जो अनएक्नॉलेज पैकेट्स हैं उनको दोबारा रिट्रांसमिट करना. ठीक है, ओके. Last thing about this protocol is another scenario. So I have a very simple question. Could you explain the operation here? Do you see any difference between this scenario and the previous scenario? इन दोनों examples में आपको कोई difference नज़र आ रहा है?
जो डिफरेंट मुझे नज़र आ रहा है, देयर इज़ ओनली चेंज इन नोमेनक्लेचर। वहाँ पे हम नोड्स के लिए नेम्स यूज़ कर रहे थे A B C and D। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं SD, S फॉर सोर्स, D फॉर डेस्टिनेशन। इन 1 इन 2 इज़ इंटरमीडिएट नोड 1, इंटरमीडिएट नोड 2, राइट। वहाँ पे CD था, यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड 1, इंटरमीडिएट नोड 2। वहाँ पे भी C और D के दरमियान पाथ ब्रेक था, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट नोड 2 और D के दरमियान हमारे पास जो पाथ हैं वो ब्रेक हैं। एंड देन RFN पैकेट यहाँ वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। RRN पैकेट वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। वहाँ पे स्टेट्स मेंशन थे सोर्स के, यहाँ पे स्टेट्स मेंशन नहीं हैं। बाकी चीज़ तकरीबन वही हैं। अगर आप इसको देखें, सो वी हैव अ सेशन सेटअप बिटवीन नोड S एंड D। इंटरमीडिएट लॉन्ग्स नोड्स आपके पास जो हैं वो IN1 एंड IN2 हैं। यहाँ पे जो लिंक है बिटवीन IN2 एंड D दैट फेल्स, तो जो इंटरमीडिएट नोड्स है वो क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा अ पैकेट RFN और उसको सेंड करेगा इन द रिवर्स डायरेक्शन टुवर्ड द सोर्स नोड S here B। आफ्टर रिसीविंग द RFN पैकेट, सोर्स नोड स्नूज स्टेट में चला जाएगा और तब तक स्नूज स्टेट में रहेगा जब तक ये अनदर पैकेट जिसको हम कहते हैं RRN वो उसको रिसीव ना हो जाए। जैसे ही वो पैकेट उसको मिल जाए, दिस इज़ एक्चुअली अ नोटिफिकेशन के जो रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिंक है वो अभी हो गई है। सो द TCP विल अगेन कम टू अनदर स्टेट एंड देयर इज़ अ कनेक्टेड स्टेट। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को अगर आप देखें तो इट एक्चुअली प्रोवाइड अ फीडबैक। स्टार्ट में मैंने बताया कि दैट इज़ अ फीडबैक बेस्ड सोल्यूशन। तो इसका जो फीडबैक बेस्ड सोल्यूशन है वो बहुत सिंपल है। वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ 2 कंट्रोल मैसेजेस to minimize the problem arises due to the frequent path breaks in MANET। तो उसको हैंडल करने के लिए जो फीडबैक मैकेनिज्म है दैट इज़ वेरी सिंपल, ओके, एंड द पैकेट्स यूज आर वेरी सिंपल, द अप्रोच यूज इज़ वेरी सिंपल वगैरह वगैरह। एट द सेम टाइम इट आल्सो परमिट TCP कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म टू रिस्पॉन्स टू कंजेशन इज द डिवाइस में मैंने बात कर ली। इसके अलावा जो TCPF है इट डिपेंड्स ऑन द इंटरमीडिएट नोड्स एबिलिटी टू डिटेक्ट रूट फेलर एंड द रूटिंग प्रोटोकॉल्स कैपेबिलिटी। तो मैंने बताया कि ये रूटिंग प्रोटोकॉल पे या अदर लिंक्स पे ये डिपेंडेंट है नेटवर्क एंड मेक क्लियर। तो नेटवर्क लेयर पे ये प्रोटोकॉल रूटिंग प्रोटोकॉल की हेल्प इसको चाहिए टू डिटेक्ट द रूट फेलर, और ये चूँकि उस पर डिपेंडेंट हैं कि पाथ को ब्रोकन पाथ को री इस्टेब्लिश करना विद इन रीजनेबल शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और सोर्स को नोटिफाई करना अबाउट द लिंक ब्रेकअप, और जब लिंक ब्रेक हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए, फिर भी उसको नोटिफाई करना। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द इंटरमीडिएट नोड्स। इसके अलावा जो फेलर पॉइंट नोड है, इट शुड बी एबल टू ऑब्टेन द करेक्ट पाथ टू द सेंडर फॉर सेंडिंग द RFN पैकेट। सो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो हम डाल रहे हैं रूटिंग प्रोटोकॉल के ज़िम्मे। इसके अलावा एक और ड्रॉबैक TCPF का है कि एडिशनल स्टेट इसमें है। नॉर्मली TCP स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को अगर आप कभी स्टडी करें तो वहाँ पे ये स्टेट नहीं है, जबकि TCPF में वी नीड एन एडिशनल स्टेट। TCP में तो हमने मॉडिफिकेशन करनी है, उसके स्टेट्स में भी हमने मॉडिफिकेशन करनी है। तो अगर आप TCP को इम्प्लीमेंट करते हैं इन MANET बाय यूजिंग TCPF अप्रोच, सो यू हैव टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग TCP लाइब्रेरीज में भी आपको जो है वो हाथ पाँव मारने होंगे। Another disadvantage of TCPF is that the congestion window used after a new route is obtained may not reflect the achievable transmission rate acceptable to the network and the TCPF receiver। चूँकि बिफोर वाली सिचुएशन डिफरेंट थी, सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जब हम TCP को यूज़ करते हैं। रिसीवर सेंडर को इन्फॉर्म करता है अबाउट द कंजेशन विंडो साइज, दिस इज़ माय लिमिट, यू डू नॉट हैव टू एक्सीड दिस लिमिट, राइट। लेकिन चूंकि वो पुराना वाला पाथ अब नहीं रहा, हमने एक नया पाथ इस्टेब्लिश किया है। सो जो कंजेशन विंडो साइज़ है वो अभी पुराना वाला नहीं है। तो TCP अगर पुराने को यूज़ कर रहा है, सो हो सकता है कि ये पुराना वाला अब एक्सेप्टेबल ना हो टू द नेटवर्क और टू द रिसीवर। तो उस केस में एक्स्ट्रा ओवरहेड इन्वॉल्व होगा। वो दोबारा से बताएगा सेंडर को कि माय न्यू
window size is this much, you have to keep in mind while you are communicating or sending packets to me. So that is another disadvantage. ठीक है? Okay, so this was about our second transport layer protocol for the transport layer of mobile ad hoc network. Let us talk about our third protocol, and that is TCP ELFN. N जहाँ पे भी होगा वो नोटिफिकेशन के लिए होगा, F जहाँ पे भी है फेलियर के लिए है, L इज़ फॉर लिंक, E इज़ फॉर एक्सप्लिसिट. Combine, it is called explicit link failure notification. So TCP with explicit link failure notification protocol, actually it follows end-to-end approach like the TCP/F protocol. पिछले प्रोटोकॉल की तरह ये भी एंड टू एंड अप्रोच को फॉलो करता है. और एंड टू एंड अप्रोच के बारे में मैंने आपको बताया कि जो कैटेगराइजेशन हम करते हैं टीसीपी ओवर मानेट की, उसकी दो सब कैटेगरीज हैं, स्प्लिट अप्रोच एंड एंड टू एंड अप्रोच. स्प्लिट अप्रोच में सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल हमने स्टडी किया, दैट इज स्प्लिट टीसीपी. एंड टू एंड अप्रोच में एक प्रोटोकॉल TCP/F हमने स्टडी किया. एंड नाउ दिस इज द सेकंड प्रोटोकॉल TCP/ELFN which belongs to the end to end सब कैटेगरी. ये जो प्रोटोकॉल है इसको प्रपोज किया था हॉलैंड एंड वाइटिया ने, एंड द ऑब्जेक्टिव वाज द सेम लाइक द प्रीवियस. मानेट है, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन है TCP की मानेट में जो ट्रेडिशनल TCP है. तो किस तरह हम TCP की परफॉर्मेंस को इनसाइड मानेट इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए जो सोल्यूशन प्रपोज किया गया दैट इज़ कॉल्ड TCP/ELFN. ओके, चूँकि ये सेम कैटेगरी का प्रोटोकॉल है एस TCP/F, तो देर इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू TCP/F. हाउएवर कुछ तो डिफरेंट होगा. वो डिफरेंट कहाँ पे है? द डिफरेंट इज़ के यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो रियल टाइम पे बेस करती है. द इंटरेक्शन बिटवीन द TCP एंड द रूटिंग प्रोटोकॉल, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रूटिंग प्रोटोकॉल और द नेटवर्क लेयर. तो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी, कोऑपरेशन होगी, और जो इंटरेक्शन दोनों के दरमियान होगी रूटिंग प्रोटोकॉल और TCP के दरमियान, दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरैक्टिव. और जो इंटरेक्शन है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द TCP एजेंट about the link and route failures so that it can avoid responding to the failure as if to congestion. दो चीज़ें हैं, पैकेट डेस्टिनेशन को नहीं मिल रहे, कंजेशन भी हो सकती है, इसके अलावा लिंक फेलियर भी हो सकती है. तो TCP के लिए पैकेट्स नहीं मिल रहे तो एक ही रीज़न है, दैट इज़ कंजेशन. लेकिन इस रियल टाइम इंटरेक्शन की वजह से हम TCP एजेंट को बता रहे हैं कि अगर पैकेट्स नहीं मिल रहे हैं तो दो रीज़न्स हैं, कंजेशन भी हो सकती है और लिंक फेलियर भी हो सकती है. अगर लिंक फेलियर है so you don't need to send to respond to the packet or send a packet. So actually you can avoid responding to the failure as if it is to congestion. यानी दोनों में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस इंटरेक्शन की वजह से. ओके, इस प्रोटोकॉल में हमारे पास जो जिस तरह प्रीवियस में हमारे पास नोटिफिकेशन थी, इसमें भी हमारे पास जो नोटिफिकेशन है जिसको हम ELFN पैकेट कहते हैं, दैट इज़ like the previous case, it is originated by the intermediate node. और कब ये पैकेट नोटिफिकेशन वाला पैकेट जनरेट होता है? जब कोई पाथ ब्रेक डिटेक्ट होती है, कोई इंटरमीडिएट नोड किसी पाथ ब्रेक को डिटेक्ट करता है. सो अपॉन डिटेक्शन ऑफ अ लिंक फेलियर, ये इंटरमीडिएट नोड सेंडर को इन्फॉर्म करता है अबाउट द पाथ ब्रेक बाय यूजिंग अ पैकेट, अ स्पेशल कंट्रोल पैकेट जिसको हम कहते हैं ELFN. और इस प्रोटोकॉल को TCP ELFN इसीलिए कहते हैं कि ये ELFN नोटिफिकेशन पैकेट को यूज़ करता है टू इन्फॉर्म द सेंडर अबाउट एनी लिंक फेलियर. अच्छा, क्वेश्चन इस कि किस तरह हम इस नोटिफिकेशन पैकेट को या इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं.
तो दिस इज़ समथिंग टेक्निकल बट लेट मी टेल यू वेरी क्विकली कि हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ICMP पैकेट है जिसका एक काम है कि ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल अगर कोई नोड है तो उसके लिए ICMP एक स्पेशल पैकेट मैसेज यूज़ करता है जिसको वो कहता है DUR मैसेज और डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, और वो सेंडर को सेंड करता है टू इन्फॉर्म इट अबाउट द सिचुएशन। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं ICMP वाले ऑप्शन को, या आप जो पिगी बैक अप्रोच एक हम कहते हैं कि आप पैकेट के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करें, एंड दैट इज़ अबाउट द रूट एरर मैसेज में आप पिगी बैक कर सकते हैं इस सिचुएशन को कि जो लिंक है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो दोनों तरीक़ों से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब लिंक फेल्योर डिटेक्ट हो गया, इंटरमीडिएट ने उसको डिटेक्ट कर लिया, इंटरमीडिएट नोड ने ELFN जो नोटिफिकेशन पैकेट है वो भी ओरिजिनेट कर दिया, सेंडर की तरफ उसको सेंड भी कर दिया। अब जब सेंडर को ये पैकेट मिलेगा, सेंडर क्या करेगा? जो TCP सेंडर है एग्जैक्टली पिछले सिनारियो की तरह ये अपने ट्रांसमिशन टाइमर्स को जो है वो डिसेबल कर देगा और ये एक और स्टेट में चला जाएगा जिसको हम कहते हैं स्टैंड बाय स्टेट। रिमेंबर लास्ट प्रोटोकॉल में हमने इसको एक और नाम दिया था स्नूज का, सेम थिंग स्टैंड बाय, यहाँ पे हम उसको स्टैंड बाय कह रहे हैं। और जस्ट लाइक द प्रीवियस ये क्या करेगा? रेगुलर ट्रांसमिशन को स्टॉप करेगा। कब तक? जब तक कनेक्शन री इस्टेब्लिश नहीं हो जाती, या जब तक जो इंटरमीडिएट नोड है वो इसको प्रॉब्लम रिजॉल्व का मैसेज सेंड ना कर दे। जैसे ही सेंडर को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, ये क्या करेगा? अपनी ट्रांसमिशन को रिज्यूम कर लेगा। अच्छा, जो स्टैंड बाय टाइम है या स्टेट है, इसमें जो TCP सेंडर है इट एक्चुअली पीरियोडिकली सेंड अ स्मॉल पैकेट। चूँकि ये हमारे पास क्या है? रियल टाइम कम्युनिकेशन है, तो ये उसके लिए वेट नहीं करता। ये क्या करता है? TCP सेंडर खुद पीरियोडिकली एक स्मॉल पैकेट सेंड करता है। पीरियोडिकली का मतलब है कि हो सकता है आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, हो सकता है आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड्स, हो सकता है आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड्स। ये इस पैकेट को सेंड करे टू सी इफ़ अ रूट हैज़ बीन इस्टेब्लिश और नॉट। यानी इस केस में सेंडर खुद जाके इंस्पेक्ट करता है बाय यूजिंग अ स्पेशल स्मॉल पैकेट के वेदर द प्रॉब्लम ऑफ लिंक एस्टेब्लिशमेंट हैज़ बीन रिजॉल्व और नॉट। तो जैसे ही इसको एक्नॉलेजमेंट पैकेट रिसीव हो जाए इन रिस्पॉन्स ऑफ द स्मॉल पैकेट जो कि इसने सेंड किया था, जैसे ही इसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, इट कम्स आउट ऑफ द स्टैंड बाय मोड या द स्टैंड बाय स्टेट, और ये क्या करेगा? अपनी ट्रांसमिशन को रिस्टोर करेगा, टाइमर्स को स्टार्ट करेगा एंड कंटिन्यू द रेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स। सो इसकी डिटेल्स में हम ज़्यादा नहीं जाते, बस इसका ऑपरेशन जो है वो प्रीवियस की तरह है। जो डिफरेंसेस थी वो मैंने आपको बता दी। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आलमोस्ट सेम है। एडवांटेजेस क्या है कि ये TCP की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा बाय डीकपलिंग द पाथ ब्रेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंजेशन। यानी इसके लिए दोनों चीज़ें अलग अलग है, जिस तरह मैंने अपनी थ्योरी में आपको बताई यहाँ पे। और ये यूज़ करता है ELFN नोटिस को टू इन्फॉर्म द सेंडर। सो एक्चुअली डीकपल्स बोथ द थिंग्स, सो दैट इज़ एन एडवांटेज। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि ये रूटिंग प्रोटोकॉल पे डिपेंडेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है जितना प्रीवियस प्रोटोकॉल था, बिकॉज ये खुद जाके पूछता है एक्सप्लिसिटली बाय सेंडिंग अ प्रॉब मैसेज, शॉर्ट मैसेज टूवर्ड्स द इंटरमीडिएट नोड्स के मुझे सिचुएशन के बारे में बताओ, एंड इट ओनली रिक्वायर्स लिंक फेलियर नोटिफिकेशन अबाउट द पाथ ब्रेक। पाथ ब्रेक हो गया, इसको नोटिफिकेशन मिल गई, दैट्स इट। अब पाथ रिकवर करने की नोटिफिकेशन इसको सेंड करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद जाके इंस्पेक्ट करेगा। सो इट इज़ लेस डिपेंडेंट ऑन द रूटिंग प्रोटोकॉल, बट स्टिल इट इज़ डिपेंडेंट। डिसएडवांटेजेस इसके अगर नेटवर्क पार्टीशन अगर हो जाए, जिस तरह चांसेस हैं बहुत ज़्यादा मानिट में नेटवर्क पार्टीशन, इस पर हमने बात की थी। सो अगर नेटवर्क पार्टीशन टेम्परेरी अगर हो जाए, द पाथ फेलियर में लास्ट लॉन्गर। ठीक है, जो पाथ इस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम ले सकता है।
और इसका एंड इफेक्ट क्या होगा, जो आपके पास सेंडर है वो तो ओरिजिनेट करेगा प्रोब पैकेट्स, तो वो सेंड करेगा पीरियोडिकली। तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, पाथ इस्टेब्लिश नहीं हुआ लेकिन हम बार बार पीरियोडिकली सेंडर पैकेट सेंड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रहा है। एंड मोर डेंजरसली जो पावर है, अगर आपके नोड्स जो हैं वो बैटरी पावर्ड हैं तो ये उसकी पावर को भी यूज़ कर रहा है। तो एंड रिजल्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, पाथ अभी इस्टेब्लिश नहीं है क्योंकि नेटवर्क हमारे पास पार्टीशन हो चुका है, डेस्टिनेशन किसी और पार्टीशन में चला गया है। तो लिंक को इस्टेब्लिश करने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये स्टिल कॉन्टीन्यूसली जो है पीरियोडिकली वो पैकेट्स को सेंड कर रहा है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज जो कंजेशन विंडो हमने यूज़ की है आफ्टर अ न्यू रूट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, like the previous case, it will not actually reflect the achievable transmission rate acceptable to the network and to the TCP receiver. So this is the same disadvantage that we have studied in the previous case. So this was our third protocol for mobile ad hoc network at the transport layer. Okay. Let us move to our next protocol. I will take some water. Give me some time, please. Okay, I am back. So our fourth protocol is called ad hoc TCP, और इन शॉर्ट इसको हम ATCP भी कह सकते हैं, राइट। इट आल्सो फॉलोज एंड टू एंड अप्रोच। व्हाट डज इट मीन, इट फॉलोज एंड टू एंड अप्रोच? जी अभी मैंने पिछले दो प्रोटोकॉल्स में आपको बताया कि इसका क्या मतलब होगा। Well, actually it means that this is a protocol which belongs to the second subcategory of protocol. They are actually derived from the TCP. यानी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, एक TCP पे बेस, एक TCP पे बेस नहीं करते। जो TCP पे बेस करते हैं उसको फिर हम टू सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं स्प्लिट अप्रोच, एक को हम कहते हैं एंड टू एंड अप्रोच। जो आपके पास स्प्लिट अप्रोच है उसका जो प्रोटोकॉल है स्प्लिट TCP, और जो आपके पास एंड टू एंड अप्रोच है उसमें दो प्रोटोकॉल हमने पढ़ लिए। एक को हमने कहा था TCP-F, एक को हमने कहा TCP-ELF-N, एंड नाउ दिस इज द थर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द सेकंड सब कैटेगरी एंड दिस इज कॉल्ड ATCP। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एक प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं ATCP और एक दूसरा प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं ACTP, राइट। जो ACTP है वो एक्चुअली अदर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो कि सेकंड कैटेगरी में आता है। या इसी तरह एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं सिर्फ ATP, वहाँ पे C नहीं है। तो जो ATP है दैट इज़ एक्चुअली एन अदर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, राइट, ATP। Let me make it clear. ATCP is based on end-to-end approach. TCP जितने भी प्रोटोकॉल हैं जो कि end-to-end approach पे हैं उसके साथ TCP का वर्ड लिखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे पहले आप लोगों ने कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ा जी? ELF-N, उसके सामने लिखा था TCP। उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था TCP-F, ठीक है, या FTCP, उसके साथ भी TCP लगा था। अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ क्या है जी? एड हॉक TCP और ATCP। जो बाकी दो प्रोटोकॉल है ACTP या ATP, उसके साथ C नहीं है, और वो दोनों प्रोटोकॉल किस कैटेगरी में है? अदर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। और एक प्रोटोकॉल है ATP जो अभी मैंने बताया, जो कि अदर ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। उस पर मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दिया था एंड यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड दैट असाइनमेंट, और उसके मार्क्स भी आप लोगों को मिल चुके हैं। सो ATP की डिटेल्स में बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, राइट। और रिमेंबर अगेन कि
जो आपके पास एंड टू एंड अप्रोच के प्रोटोकॉल है उसके साथ टीसीपी होता है, और जो बाकी है उसके साथ सिर्फ टीपी है। सो यहाँ पे एटीसीपी है, वहाँ पे एसीटीपी है और एटीपी है, जो कि अदर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एड हॉक टीसीपी। अगेन दिस इज एन एंड टू एंड अप्रोच, इट फॉलोज एंड टू एंड अप्रोच। और ये जो है, चूँकि ये सेम कैटेगरी के प्रोटोकॉल्स हैं, TCP-F, TCP-ELFN एंड ATCP, सो in operation up to some extent it is similar to the previous protocols, right? जो previous F है और ELFN है, ये उसी की तरह है, and it is also based on the TCP। और पिछले दो प्रोटोकॉल्स की तरह it also uses network layer feedback mechanism to make the TCP sender aware of the status of the network path or which the TCP packets are propagated। तो हम क्या कर रहे हैं, बाकी लेयर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू लेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पाथ दैट इज़ ब्रेक्ड, राइट। तो पिछले प्रोटोकॉल्स की तरह हम क्या कर रहे हैं, हम नेटवर्क लेयर पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके फीडबैक पे हम डिपेंड कर रहे हैं। ओके, बेस्ड ऑन द फीडबैक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इंटरमीडिएट नोड्स, the TCP sender changes its state to persist state, congestion control state or the retransmit state। ओके, जिस तरह प्रीवियस दो प्रोटोकॉल्स में हमने देखा कि जब सेंडर को इंटरमीडिएट नोड्स की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फीडबैक इंफॉर्मेशन, बाय यूजिंग अ स्मॉल पैकेट, नोटिफिकेशन पैकेट, के पाथ जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो TCP सेंडर क्या करता है, अपने स्टेट को चेंज करता है। तो इस केस में जो स्टेट है वो परसिस्टेंट स्टेट पे प्रोटोकॉल आपका चला जाएगा। इसके अलावा कंजेशन कंट्रोल स्टेट पे भी जा सकता है और री ट्रांसमिट स्टेट पे भी जा सकता है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द नेटवर्क, ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द पाथ। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ परसिस्ट या परसिस्टेंट स्टेट के बारे में। ओके, जो आपके पास इंटरमीडिएट नोड्स हैं, जब उनको पता चलता है कि पाथ अवेलेबल नहीं है, पाथ ब्रेक कर गया, या नेटवर्क इज़ पार्टीशन्ड जिसकी वजह से पाथ ब्रेक कर गया, तो जो TCP सेंडर है उसका स्टेट चेंज हो जाता है टू परसिस्ट या परसिस्टेंट स्टेट। ये जो स्टेट है ये स्टैंड बाय की तरह है या ये स्नोज की तरह है, same state but we are recognizing them with different names in different protocols। so यहाँ पे जो state है that is persist state। इस state में like the previous approaches it will avoid unnecessary transmission या retransmission, जो कि नॉर्मली TCP करता रहता है। अगर उसको जो है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो वो रिट्रांसमिट करता है पैकेट को, वो समझता है कि कंजेशन है, हो सकता है किसी और वजह से पैकेट रिसीवर को ना मिला हो या इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली हो। तो इस केस में परसिस्टेंट स्टेट में जो ATCP है इट विल अवॉइड सेंडिंग अननेसेसरी पैकेट्स और रिट्रांसमिशन को ये अवॉइड करेगा। जो ATCP प्रोटोकॉल है जब ये TCP को परसिस्टेंट स्टेट में लेके जाता है तो ये कुछ और काम भी करता है। वो काम क्या है कि it actually sets the TCP congestion window size to 1। अब TCP congestion साइट को ये 1 पे लेके आता है, क्यों? ताकि इंश्योर कर सके कि TCP does not continue using the old congestion window value। रिमेंबर प्रीवियस टू प्रोटोकॉल्स में एक प्रॉब्लम था कि वहाँ पे ड्रॉबैक्स में आपने देखा कि कंजेशन विंडो वही रहती है। यहाँ पे इट इज़ मोर इंटेलिजेंट। ATCP क्या करता है, परसिस्टेंट स्टेट में तो उसको लेके जाता है TCP को, लेकिन साथ में उसकी जो कंजेशन विंडो साइज़ है उसको 1 पे लेके आता है, उसको कम कर देता है ताकि इंश्योर कर सके कि TCP डज़ नॉट कंटिन्यू यूजिंग द ओल्ड कंजेशन विंडो वैल्यू। अब इसका फ़ायदा क्या होगा इस कंजेशन विंडो को 1 पे लाने का? इट एक्चुअली फोर्सेस द TCP to probe the correct value of the congestion window to be used for the new route। यानी पहले से TCP को ये बाउंड कर देता है कि जैसे ही आपका स्टेट चेंज होगा आप रिट्रांसमिशन पे जाएंगे, तो रिट्रांसमिशन पे जाने से पहले आप क्या करेंगे, अपनी कंजेशन विंडो के साइज़ को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू रूट,
सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ATCP प्रोटोकॉल, जो कि पिछले दो प्रोटोकॉल्स में नहीं थी। तो अब अगर कोई इंटरमीडिएट नोड किसी पैकेट को लॉस करता है ड्यू टू एनी रीज़न, एरर्स वगैरह की वजह से, सो जो ATCP प्रोटोकॉल है एट द सेंडर, it will immediately retransmit it without invoking the congestion control algorithm. ओके और ये जो ATCP प्रोटोकॉल है ये ख़ुद को TCP के साथ कंपेटिबल भी बनाता है। आप देख सकते हैं कि ATCP क्या कर रहा है, TCP के कंजेशन विंडो को भी चेंज कर रहा है, उसके स्टेट को भी चेंज कर रहा है। सो इसको TCP के साथ कंपेटिबल होना चाहिए, ठीक है। और इस कंपैटिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, TCP के प्रोटोकॉल को मॉडिफाई करना होगा। और ये एक डिसएडवांटेज भी है इन सारे प्रोटोकॉल्स का कि हम एक्चुअल TCP के प्रोटोकॉल्स को मॉडिफाई करते हैं, बिकॉज इट नीड टू बी कंपैटिबल। हम TCP के को यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए इन प्रोटोकॉल्स में हम क्या करते हैं, हम TCP को जो है वो मॉडिफाई करते हैं फॉर आवर ओन यूज़। ये जो ATCP का प्रोटोकॉल है, इट इज़ एक्चुअली अ सेपरेट प्रोटोकॉल विच विल लाई बिटवीन द TCP एंड IP। सो टू बी मोर कंसाइज आप कह सकते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा लेयर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बिटवीन TCP एंड IP इन द TCP प्रोटोकॉल स्टैक। द लेयर इज़ गोइंग टू बी अ थिन लेयर, बट स्टिल इट इज़ अ लेयर विच विल रिजाइड बिटवीन द TCP एंड द IP प्रोटोकॉल्स। ओके पिछले प्रोटोकॉल्स की तरह ये प्रोटोकॉल भी इट विल मेक यूज़ ऑफ नोटिफिकेशन पैकेट्स, जिसको हम कहते हैं ECN। हर एक प्रोटोकॉल में अगेन इसका नाम डिफरेंट है। सो यहाँ पे जो नाम है दैट इज़ कॉल्ड ECN, और इसको हम यूज़ करते हैं स्टेट्स को मेंटेन रखने के लिए भी। ओके सो ATCP is actually implemented as a thin layer। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इस फिगर में ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा, इस लेयर अप्रोच का एक फ़ायदा भी है, वो ये है कि दिस डज नॉट एक्चुअली रिक्वायर चेंज इन द एग्जिस्टिंग TCP प्रोटोकॉल डायरेक्टली। ये जो लेयर है ये हर वक्त एक्टिव भी नहीं होता। दिस इज़ एक्टिव ओनली एट द TCP सेंडर साइड पे ये लेयर हमें चाहिए। और इसकी जो मेजर फंक्शनैलिटीज़ आप कह लें वो हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, वो ये हो सकती हैं कि इट विल एक्चुअली मॉनिटर द पैकेट्स सेंड एंड रिसीव्ड बाय द TCP सेंडर। क्योंकि ये इम्प्लीमेंट कहाँ पे है, TCP सेंडर पे है, तो ये TCP पे नज़र रखेगा एट द सेंडर साइड, कौन से पैकेट TCP को मिल रहे हैं या कौन से पैकेट TCP सेंड कर रहा है, ठीक है, इसकी मॉनिटरिंग करेगा। इसके अलावा जो सेंडर TCP का स्टेट है वो इस वक्त पे क्या है, और थर्ड चीज़ के नेटवर्क का स्टेट इस वक्त पे क्या है, तो इन चीज़ों को ये मॉनिटर रखेगा ये ATCP प्रोटोकॉल लेयर। इसके अलावा जो ECN है, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, जो कि ये प्रोटोकॉल यूज़ करता है, जहाँ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, इट इज़ एक्चुअली समथिंग which has already been proposed in another RFC, request for comment document, for the internet protocol। वन लाइन में ECN की फंक्शनैलिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें, सो दैट विल अलाउ यू एंड टू एंड नोटिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क कंजेशन विदाउट ड्रॉपिंग योर पैकेट्स, ठीक है। सो ECN इज़ एक्चुअली अ प्रोटोकॉल ऑलरेडी बीन डिफाइंड, उसको हम यूज़ कर रहे हैं ATCP में in order to get end-to-end notification of the network congestion। So यहाँ पे आप देख सकते हैं we have a TCP layer, we have a network layer, and in between we have the ATCP layer। यहाँ पे आप डेटा को देख सकते हैं, जो डेटा TCP सेंड कर रहा है उसको भी ये मॉनिटर कर रहा है, और जो डेटा नेटवर्क लेयर से TCP लेयर को मिल रहा है उसको भी ये क्या कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है। So it is actually a thin layer implemented between the two। Okay। In the next figure B, we actually have a state transition diagram
for the ATCP protocol at the sender side. This is important to understand and very technical as well. I will try to explain it, but still it is confusing. So it is confusing because आप लोगों, this is based on the concepts of the transition diagram of the transport layer protocol. तो अगर आप लोगों ने बैचलर में ट्रांसपोर्ट लेयर पे स्टेट ट्रांजिशंस डायग्राम पढ़ी हो, या अगर आपको याद है तो फिर आपको ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम समझ में आएगा. अगर आपने नहीं पढ़ी या आपने पढ़ी है लेकिन अभी याद नहीं है, सो फर्स्ट यू हैव टू रिव्यू देम बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, बट आई विल ट्राई टू मेक देम सिंपल एंड आपको वापस चीज़ों को दोहराना ना पड़े. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने स्टेट्स हैं? यू सी वी हैव 4 स्टेट्स. वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? जो आपको कैपिटल में नज़र आ रहा है, दे आर एक्चुअली नेम ऑफ द स्टेट्स. नॉर्मल आपके पास एक स्टेट हो गया, कंजेस्टेड आपके पास दूसरा स्टेट हो गया, लॉस आपके पास तीसरा स्टेट हो गया, एंड डिस्कनेक्ट आपके पास चौथा स्टेट हो गया. सो पहले तो ये क्लियर कर ले कि वी हैव 4 डिफरेंट स्टेट्स हेयर. DUR जी, दिस इज़ एब्रिवेशन जो आप लोगों ने अभी देखी. नो, you doesn't came across, but this is a packet, a notification. यहाँ पे लिखा भी है कि अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल है तो उस केस में ये एक पैकेट जनरेट करेगा DUR का, इफ़ द डेस्टिनेशन इज़ अनरीचेबल. ओके, इसके अलावा और भी स्टेट्स. अच्छा, इसको हम कहते हैं स्टेट ट्रांजिशंस. जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं, सो देयर इज़ कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नॉर्मल से कंजेस्टेड स्टेट में कब आएंगे, कब ट्रांजिशन होगी? व्हेन ECN हैपन्स. This is another transition. So we have different transitions. So 2 things. We have states and we have transitions among states. States हमारे पास 4 हैं, transition हमारे पास numerous हैं. ठीक है? Okay. Let us start discussing it. When a TCP connection is established, या session establish हो जाए between a source and destination, तो जो ATCP है at the sender side, उस केस में उसका जो स्टेट है वो नॉर्मल होगा. हम यहाँ पे होंगे. TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो ATCP एट द सेंडर साइड किस स्टेट में होगा? नॉर्मल स्टेट में होगा. ठीक है. अब नॉर्मल केस में ये क्या करेगा? नथिंग. ये TCP के ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं करेगा. आप कह सकते हैं कि ये इनविजिबल रहेगा. ये सिर्फ जो है वो इट विल कीप एन आइज ऑन द कम्युनिकेशन ऑफ द TCP. पैकेट्स पे नज़र रखेगा लेकिन उसको इंटरफेयर नहीं करेगा बिकॉज द TCP ट्रांसमिशन इज़ नॉर्मल, सो देयर इज़ नो नीड टू इंटरफेयर. ओके, अब हम बात करते हैं पैकेट लॉस की. एक स्टेट तो मैंने बता दिया. नॉर्मल स्टेट में कब होगा? जब TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो तब ये नॉर्मल स्टेट में होगा ATCP, और इस स्टेट में ये कोई इंटरफेयर नहीं करेगा विद द ऑपरेशन ऑफ द TCP और इनविजिबल रहेगा. सिर्फ इट विल कीप एन आइज ऑन द कम्युनिकेशन ऑन द पैकेट्स ऑफ द TCP. अब हम बात करते हैं पैकेट लॉस की. पैकेट लॉस हो सकते हैं ड्यू टू एनी रीजंस. मोर स्पेसिफिकली वायरलेस नेटवर्क्स में तो पैकेट लॉस इज़ वेरी कॉमन. सो जब पैकेट लॉस करते हैं या आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स हैं एट द डेस्टिनेशन, इट जनरेट्स डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स. ट्रेडिशनल TCP में आपको पता होगा कि जब हमें डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो TCP सेंडर क्या करता है?
ट्रांसमिट करता है सेगमेंट्स को और अपने कंटेंशन विंडो को श्रिंक करता है। वो सोचता है कि कंजेशन है जिसकी वजह से पैकेट लॉस है, सो आई नीड टू रिड्यूस माई स्पीड। कम पैकेट्स वो सेंड करता है और पैकेट्स को जो लॉस जिनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई उसको वो क्या करता है, दोबारा जो है वो रीट्रांसमिट करता है। सो दिस इज़ नॉर्मल ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं ATCP की। ATCP इस केस में क्या करेगा, पैकेट लॉस के केस में एट द सेंडर साइड, इट एक्चुअली सिट्स देयर and keep an eyes on the duplicate acknowledgement. It actually counts the number of duplicate acknowledgement received. हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पैकेट लॉस कर रहे हैं। नॉर्मल ट्रेडिशनल TCP के केस में TCP को जब डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो वो क्या करता है, सेंडर साइड पे रीट्रांसमिट करता है सेगमेंट्स को और अपने विंडोज कंटेंशन विंडो को श्रिंक करता है। लेकिन जो ATCP है, इट एक्चुअली कीप एन आइज ऑन द नंबर ऑफ द डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट दैट द TCP रिसीव, यानी उसको काउंट करता है जो इसको मिलती है। और जब ये डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट की काउंटिंग 3 तक पहुंच जाए, ठीक है, 3, सो जब ये 3 तक पहुंच जाए ये काउंटिंग, तो ATCP क्या करेगा, when it reaches 3, instead of forwarding the duplicate acknowledgement to the TCP, it put TCP in persist state. अब देखिए ये क्या कर रहा है, पहले इसने इंटरफेयर नहीं की नॉर्मल जब हमारे पास कंडीशन थी, लेकिन अब चूंकि कुछ गड़बड़ हो गई, हमारे पास 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ गई, ATCP को रिसीव हो गई, तो ये क्या करेगा, ये TCP को फ़ौरन परसिस्टेंट स्टेट में लेके जाएगा। और परसिस्टेंट स्टेट में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। और ख़ुद ATCP किस स्टेट में आएगा, लॉस स्टेट में, ठीक है। दिस इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट टू द लॉस स्टेट। और ये ट्रांजिशन कब होती है, जब सेंडर को 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। तो ये ATCP 2 काम करेगा, ख़ुद अपना स्टेट चेंज करेगा और TCP को पर्सिस्ट स्टेट में लेके जाएगा। तो अपने जब जैसे ही ये लॉस स्टेट में आएगा, ठीक है, और TCP को ये पर्सिस्ट स्टेट में लेके जाएगा, तो जो TCP सेंडर है वो एक्चुअली पर्सिस्ट स्टेट में, आपको पता है TCP कुछ भी नहीं करता, तो TCP सेंडर अवॉइड करेगा इन्वोकिंग द कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम, यानी वो स्लीप मोड में चला जाएगा। ऑल्दो अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो फिर TCP क्या करता, रीट्रांसमिशन करता, लेकिन ATCP की वजह से TCP रीट्रांसमिशन नहीं कर रहा, TCP परसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। यानी ये TCP को बता रहा है कि आप आराम करें, आप रीट्रांसमिशन ना करें, आई विल हैंडल द सिचुएशन। ATCP क्या कह रहा है, TCP को बता रहा है कि आई विल हैंडल द सिचुएशन। तो इस लॉस स्टेट में ATCP क्या करेगा, इट विल रीट्रांसमिट द अनएक्नॉलेज्ड सेगमेंट फ्रॉम द TCP बफर। इसका कंट्रोल तो है, पैकेट्स तो सेंडर के पास तब तक रहते हैं जब तक उसकी सही एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती। तो ये क्या करेगा, इस स्टेट में ATCP रीट्रांसमिट द सेगमेंट्स जो कि TCP के बफर में पड़े हैं। सो इन द लॉस स्टेट ATCP विल रीट्रांसमिट द अनएक्नॉलेज्ड सेगमेंट फ्रॉम द TCP बफर। अब जब नई एक्नॉलेजमेंट आती है फ्रॉम द रिसीवर साइड, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं है, नई एक्नॉलेजमेंट है, तो ये नई एक्नॉलेजमेंट ये ATCP इसको शायद क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड द TCP एंड द TCP सेंडर is removed from the persistent state and then the ATCP sender changes to the normal state. अब देखिए लॉस को इसने हैंडल कर लिया, उसने पैकेट रिट्रांसमिट कर लिए, नाउ इट्स टाइम, एक्नॉलेजमेंट आ गई रिसीवर की तरफ से कि ओके द कंजेशन इज़ हैंडल, पैकेट मुझे मिल गए। अब ये क्या करेगा, अब ये ख़ुद जो है नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। जब एक्नॉलेजमेंट इसको मिलती है तो ये अपनी स्टेट ट्रांजिशन करेगा, ख़ुद नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा और TCP को जगा देगा कि मैंने आपके लिए पैकेट लॉस हैंडल कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू प्ले इन द ग्राउंड। तो नॉर्मल स्टेट में आपको पता है कि ये कुछ भी नहीं करेगा, जब इनविजिबल मोड में रहेगा और आइज़ कीप ऑन आइज़
on all the communication, on all the traffic, and then TCP will come in action again. Okay, so let me revise कि जब नई acknowledgement आती है from the receiver side TCP को, तो ये ATCP क्या करेगा, खुद नॉर्मल स्टेट में चलेगा और TCP को जो है वो persistent स्टेट से रिमूव करेगा, उसके एक्चुअल स्टेट में लाएगा और ख़ुद नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा. ओके, सो दिस वाज अबाउट द लॉस्ट स्टेट. इस लॉस्ट स्टेट में जब ATCP सेंडर इस लॉस्ट स्टेट में होता है, ठीक है, ये तो एक ट्रांजिशन की हमने बात कर ली. अब ये लॉस्ट स्टेट से ये किसी दूसरे स्टेट में भी जा सकता है, उसकी हम बात करते हैं. सो व्हेन द ATCP सेंडर इज़ इन द लॉस्ट स्टेट और इस स्टेट में इसको कोई दूसरा मैसेज मिल जाए, ECN जिसमें मैंने बात की, या ICMP का कोई मैसेज इसको मिल जाए, तो ये अपने स्टेट को कंजेस्टेड में कन्वर्ट करता है. ठीक है, अब कंजेशन है जो कि ये हैंडल नहीं कर सकता. सो इस स्टेट ट्रांजिशन के दौरान जो ATCP सेंडर हैं, ये क्या करेगा, TCP को परसिस्टेंट स्टेट से रिमूव करेगा. और व्हेन द नेटवर्क गेट कंजेस्टेड, तो कुछ फ्लैग्स वगैरह है ECN के, वो ये सेट करेगा इन द एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स वगैरह, और TCP जो सेंटर हैं उसको भी ये पैकेट ECN का रिसीव होगा इन द नॉर्मल स्टेट. TCP को जो जब ये ECN का पैकेट रिसीव होता है इन द नॉर्मल स्टेट, तो उस केस में it changes to the congestion state and just remain invisible. यानी हर एक स्टेट को ये हैंडल नहीं कर सकता. अगर कंजेस्टेड स्टेट में है, पहले ये लॉस स्टेट में था, लॉस स्टेट में, वहाँ से इसको ECN का मैसेज मिला, ठीक है, विच इज़ एन इंडिकेशन के कंजेस्टेड है, कंजेशन है नेटवर्क में, तो ये कंजेस्टेड स्टेट में आएगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर ये नॉर्मल स्टेट में है और तब इसको ECN का मैसेज मिल जाए, उस केस में भी ये किस स्टेट में आएगा, कंजेशन में. यानी कंजेस्टेड स्टेट में आने के लिए अगर ये नॉर्मल स्टेट में है और ECN इसको मिल जाए, तब भी ये कंजेस्टेड फॉर्म स्टेट में आएगा. और अगर ये लॉ स्टेट में है और इसको ECN मिल जाए, तब भी ये कंजेस्टेड मोड में या स्टेट में आएगा. तो हम बात कर रहे थे लॉस मोड की कि ये लॉस स्टेट में है और इसको ECN का पैकेट मिला, तो ये कंजेस्टेड स्टेट में आएगा. और व्हेन द नेटवर्क गेट कंजेस्टेड, तो ECN का पैकेट मैसेज इसको मिला, तो द ATCP जो सेंडर हैं, इसको जैसे ही ECN का पैकेट मिला, तो ये क्या होगा, कंजेस्टेड स्टेट में चला जाएगा. और जिस तरह ये नॉर्मल स्टेट में इनविजिबल था, इसी तरह ये कंजेस्टेड स्टेट में भी इनविजिबल रहेगा. इनविजिबल जब ये होता है तो फिर ये अपना काम नहीं करता. फिर कौन काम करता है, TCP काम करता है. तो ये TCP को परमिट करेगा कि अब जो है ना, मेरे बस का काम नहीं है, अब आपने इस कंजेस्टेड सिचुएशन को हैंडल करना है. TCP क्या करता है, इट एक्चुअली इन्वोक्स द कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म. उसके पास तो सोल्यूशन है, कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म को वो इन्वोक कर देता है, जगा देता है, उसको अलर्ट कर देता है. ठीक है, ओके. सो दिस वाज अबाउट द लॉस स्टेट इन कंजेस्टेड स्टेट. लॉस स्टेट में ATCP इज़ इन एक्शन, नॉर्मल और कंजेस्टेड स्टेट में TCP इज़ इन एक्शन. ओके, एक और स्टेट है देयर इज़ डिस्कनेक्ट, उस पर भी थोड़ा सा हम let us shed some light on that as well. Okay, when a root failure or a network partition occurs in the network, तो उस केस में क्या होगा, यानी existing root available नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, या नेटवर्क पार्टीशन अकर हो गई, तो जो ATCP है, एक्सपेक्ट द नेटवर्क लेयर, चूँकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने स्टार्ट से किस पे छोड़ी है, नेटवर्क लेयर के रूटिंग प्रोटोकॉल्स पे. सो ATCP विल एक्सपेक्ट कि जो नेटवर्क लेयर है, इट विल एक्चुअली डिटेक्ट दिस प्रॉब्लम्स एंड विल इन्फॉर्म द ATCP सेंडर थ्रू अ प्रोटोकॉल मैसेज, फॉर एग्जांपल ICMP डेस्टिनेशन मैसेज जो मैंने आपको बताया, DUR, उसके ज़रिए ये उसको इन्फॉर्म करेगा. ठीक है, सो जैसे ही ये DUR मैसेज रिसीव होता है,
ATCP puts the TCP sender into persist state and enter into the disconnect या disconnect state. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस स्टेट की. तो इस स्टेट में ATCP कब आएगा? जब इसको DUR यानी डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज मिल जाए. वो मैसेज इसको किसी भी स्टेट में मिल सकता है, नॉर्मल में भी मिल सकता है, कंजेस्टेड में भी मिल सकता है और लो स्टेट में भी मिल सकता है. वट एवर द स्टेट इज़, जैसे ही ATCP को ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज पैकेट मिलता है, ये एक्टिव हो जाता है. डिसकंटिन्यू में भी ये एक्टिव रहता है और TCP को कहता है कि आप आराम करें. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. लेकिन इस केस में ये डिपेंडेंट है नेटवर्क लेयर पे. नेटवर्क लेयर को कहता है कि आप सिचुएशन को क्लियर करें, रूट्स को इस्टेब्लिश करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करें. ठीक है, तो एक्चुअली अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द DUR मैसेज ATCP पुट द TCP सेंडर इनटू अ परसिस्टेंट स्टेट और खुद डिस्कॉन स्टेट में चला जाता है. कब तक ये इस स्टेट में रहेगा, डिस्कॉन्ट स्टेट में? until it is connected and receive any update, any data or duplicate acknowledgements. ठीक है, यानी जब इसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए तो देयर इज़ एन इंडिकेशन, या जब इसको डेटा मिल जाए तो देयर इज़ एन इंडिकेशन कि अब जो पाथ है वो अवेलेबल है. So on the occurrence of any of these event, ATCP again it will change its state to the normal. यानी जब इसको डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिल जाए विच इज़ फ्रॉम द रिसीवर, या इसको पैकेट डेटा मिल जाए, सो ये अपने स्टेट को चेंज करेगा टू द नॉर्मल स्टेट. द कनेक्टेड स्टेटस ऑफ द पाथ कैन बी डिटेक्टेड बाय द एक्नॉलेजमेंट. इस एक्नॉलेजमेंट की वजह से देयर इज़ एन इंडिकेशन कि जो पाथ जो पहले जो था वो ब्रेक था, अभी जो है उसका स्टेटस वो कनेक्टेड है. ओके, सो these were some of the states जो कि हमने डिस्कस की, और मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेट में TCP किस कंडीशन में होगा और ATCP किस कंडीशन में होगा, कौन अपना रोल अदा करेगा, कौन जो है वो ट्रांजिट या इनविजिबल स्टेट में होगा, और कब जो है वो एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन ले सकते हैं. जो मैंने बताया वो इस टेबल में समरी के फॉर्म में गिवन भी है. ठीक है, कि ये ट्रांजिशंस कब अकर होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये इवेंट अकर हो जाए तो कौन सा एक्शन लेना वगैरह सब, फिर इस टेबल को आप खुद देख लें. Let us talk about the advantages and disadvantages of ATCP protocol. It actually offers two main advantages. The first is improvement. जितने भी प्रोटोकॉल्स हम पढ़ रहे हैं वो TCP की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं by using different mechanism, by taking coordination from the other layers. क्योंकि TCP itself in its traditional way is not suitable to work in the MANET environment. So we need to improve the performance of the TCP. So all these solutions are there to improve this the performance of the TCP in such environments while maintaining end-to-end semantic of the TCP as well. इसके अलावा जो एक और एडवांटेज है इसका, देयर इज़ कंपैटिबिलिटी विद द ट्रेडिशनल TCP. आपने देखा कि इसमें एक्चुअली हम एक एक्स्ट्रा थिन लेयर को ऐड करते हैं. ठीक है, and the layer is actually not only compatible with the TCP but it also actually control the TCP protocol. ठीक है, जिस तरह हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में देखा. So these advantages permit the TCP to work seamlessly in the internet or with the internet as well. यानी ad hoc नेटवर्क के लिए तो है भी, तो इसके अलावा आप इंटरनेट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. On the other side, some disadvantages include dependency on the network layer. आप लोगों ने देखा कि कंजेशन के लिए डिटेक्ट करने के लिए जो पाथ ब्रेक है उसको डिटेक्ट करने के लिए और रीस्टेब्लिश करने के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन द नेटवर्क लेयर. सो रूट फेलवेयर और नेटवर्क पार्टीशंस को डिटेक्ट करने के लिए वी आर डिपेंडेंट, और उसको जब रूट री एस्टेब्लिश हो जाए उस केस में भी हम डिपेंडेंट हैं ऑन द नेटवर्क लेयर और मोर स्पेसिफिकली ऑन द रूटिंग प्रोटोकॉल. इसके अलावा एक थिन लेयर हम ऐड करते हैं TCP लेयर की इनटू द TCP प्रोटोकॉल स्टैक, एंड इट एक्चुअली रिक्वायर्ड चेंजेस इन द इंटरफेसेस फंक्शन करंटली बीइंग यूज्ड. आपको पता है कि जब एक लिंक जब एक लेयर दूसरे लेयर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, सो वी एक्चुअली यूज़ डिफरेंट पोर्ट्स, और यू कैन से जिस तरह
सॉकेट प्रोग्रामिंग जिसको हम कह सकते हैं। तो जब आप किसी लेयर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, देयर इज़ अ टीसीपी लेयर। तो जब टीसीपी डायरेक्टली इन द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट, टीसीपी डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द नेटवर्क लेयर। लेकिन इस केस में टीसीपी कम्युनिकेट करेगा एटीसीपी के साथ और एटीसीपी कम्युनिकेट करेगा टीसीपी के साथ। सो इट मीन्स के वी एक्चुअली नीड टू मॉडिफाई द फंक्शनैलिटीज प्रोवाइडेड बाय दिस लेयर एज वेल, ठीक है, या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस लेयर एज वेल। तो वहाँ पे भी आपने चेंजेस करनी होगी, दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेज। So this was our fourth protocol for the transport layer of mobile ad hoc network. Okay, let us move to our fifth protocol. The fifth protocol is called TCP bus protocol. It also follows end-to-end approach like the previous three protocol. तो इसका मतलब है कि ये भी उसी कैटेगरी का ही एक प्रोटोकॉल है। और बस स्टैंड फॉर बफरिंग कैपेबिलिटी एंड सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज़ व्हाई इट इज कॉल्ड बस। इट इज़ सिमिलर like the TCPF or ELNF approaches because they are in the same category. सो चूँकि ये उसकी तरह है तो ये क्या करता है, ये भी फीडबैक मैकेनिज्म पे इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। और ये फीडबैक इसको कौन प्रोवाइड करता है, इंटरमीडिएट नोड इसको प्रोवाइड करती हैं। एंड द फीडबैक इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट द डिटेक्शन ऑफ अ पाथ ब्रेक बिटवीन द नोड्स इन द टोपोलॉजी। ओके, ये जो प्रोटोकॉल है इज़ एक्चुअली मोर डिपेंडेंट ऑन द रूटिंग प्रोटोकॉल्स। जो प्रीवियस टू प्रोटोकॉल्स थी TCP F एंड ELNF, वो एक्चुअली दे वर डिपेंडेंट बट नॉट दैट मच। इसकी जो डिपेंडेंसी है ऑन द रूटिंग प्रोटोकॉल एज़ कंपेरेटिवली वो ज़्यादा है। और ये जो बस प्रोटोकॉल है इट इज़ एक्चुअली प्रपोज्ड विद अ स्पेसिफिक रूटिंग प्रोटोकॉल या रूटिंग स्कीम जिसको हम कहते हैं ABR और एसोसिएटिविटी बेस्ड रूटिंग। दैट इज़ अनदर रूटिंग प्रोटोकॉल। उसकी डिटेल्स में शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, बट थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूँ कि जो एसोसिएटिविटी बेस्ड रूटिंग है जिसको हम ABR कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली अ मोबाइल रूटिंग प्रोटोकॉल। और इसको इन्वेंट किया गया था फॉर एड हॉक नेटवर्क, मोबाइल एड हॉक नेटवर्क मानेट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के प्रोटोकॉल पे डिपेंडेंट हैं, यानी ये उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जिसको हम ABR कहते हैं। और ये जो ABR प्रोटोकॉल हैं उसमें फिर हमारे पास 3 फेजेस हैं। एक फ़ेज़ को हम रूट डिस्कवरी फ़ेज़ कहते हैं, दूसरे फ़ेज़ को हम रिकंस्ट्रक्शन रूट रिकंस्ट्रक्शन फ़ेज़ कहते हैं, और एक को हम रूट द थर्ड फेज़ इज़ कॉल्ड रूट डिलीशन फ़ेज़। पहले फ़ेज़ में हम रूट को डिस्कवर करते हैं, दूसरे फेज़ में अगर कोई लिंक ब्रेक कर जाए तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिकंस्ट्रक्ट फेज़। और थर्ड फेज़ में जो डिस्कवर्ड रूट था जब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। सो दीज 3 आर द बेसिक स्टेप्स और phases of the ABR protocol। अच्छा, चूँकि ये ABR प्रोटोकॉल पे बेस है तो ABR प्रोटोकॉल में डिफरेंट टाइप्स के मैसेजेस, कंट्रोल मैसेजेस कम्युनिकेट होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन दोज मैसेजेस सम ऑफ द मैसेजेस आर लाइक LQ मैसेजेस जिसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड क्वेरी मैसेज एंड रिप्लाई मैसेज, जो कि ABR में यूज्ड हैं। उन्हीं मैसेजेस को हम TCP बस में भी यूज़ करेंगे। लेकिन इन मैसेजेस को TCP के साथ यूज़ करने के लिए या TCP बस में यूज़ करने के लिए दे नीड टू बी मॉडिफाइड। और मॉडिफिकेशन किस लिए होगी, ताकि ये TCP कनेक्ट और सेगमेंट्स को भी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सके। एट द सोर्स जो TCP बस सेंडर प्रोटोकॉल है, इट विल एक्चुअली ट्रांसमिट द सेगमेंट्स इन द सेम वे जिस तरह जनरल आपके पास TCP का प्रोटोकॉल है, और वो जो है वो पैकेट्स ट्रांसमिट करता है। यानी जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है TCP जस्ट लाइक इन अ ट्रेडिशनल वे वो ऑपरेट करेगा। लेकिन जब कोई फीडबैक इसको इंटरमीडिएट नोड की तरफ से मिल जाए
फिर जो है टीसीपी बस रोल, उसका रोल जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड को हम पिविट नोड कहते हैं। पिविट आप लोगों ने शायद ये वर्ड पहले भी सुना हो, इफ़ यू आर फैमिलियर विद द डेटा स्ट्रक्चर। वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, और एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज़ कॉल्ड क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। वहाँ पे हम पिविट को यूज़ करते हैं, पिवोट भी इसको लोग कहते हैं। सो वहाँ पे ये एक वैल्यू है जो हम सेलेक्ट करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वैल्यू हम देखते हैं कि उस अनसॉर्टेड डेटा में कितने वैल्यूज़, कितना डेटा या कितने नंबर्स उससे लेस हैं और कितने उससे ज़्यादा हैं। तो जो लेस है उसको हम लेफ़्ट पे पिविट के लेफ़्ट पे प्लेस करते हैं, और जो ग्रेटर है उसको हम पिविट वैल्यू के राइट पे प्लेस करते हैं। सो ऑल द लेस फ्रॉम द पिविट आर ऑन द लेफ्ट, ऑल द ग्रेटर वैल्यूज़ फ्रॉम द पिविट आर ऑन द राइट। फिर पिविट को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है इन द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। कोई कहता है कि फर्स्ट वैल्यू को पिविट रखो, कोई कहता है कि लास्ट वैल्यू को पिविट रखो, कोई कहता है कि मीडियम को फाइंड करो और उसको पिविट रखो। सो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज। ओके, दैट वाज समथिंग विद द रिलेटेड विद द वर्ड पिविट, जिसको हम सॉर्टिंग में यूज़ करते हैं। यहाँ पे पिविट नोड का मतलब है इंटरमीडिएट नोड जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही कोई पाथ ब्रेक डिटेक्ट हम करते हैं, पिविट नोड जो है वो एक मैसेज जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रोटोकॉल्स जनरेट करता है। उस मैसेज को हम कहते हैं ERDN, फीडबैक मैसेज, एंड ERDN स्टैंड फॉर एक्सप्लिसिट रूट डिसकनेक्शन, और इस मैसेज को हम सेंड करते हैं टुवर्ड द सेंडर्स। सो टीसीपी बस सेंडर को जैसे ही ये मैसेज रिसीव होता है, फीडबैक मैसेज, ये क्या करता है, जस्ट लाइक द प्रीवियस अप्रोचेस, इट विल स्टॉप सेंडिंग द पैकेट्स, और ये टाइमर्स को फ्रीज कर लेगा। सो आप देख रहे हैं द ऑपरेशन इज सिमिलर टू द जस्ट लाइक द अदर प्रोटोकॉल्स। ओके, इसके अलावा जो पैकेट्स इस दौरान ट्रांजिट में थे एट द इंटरमीडिएट नोड फ्रॉम द सेंडर टूवर्ड्स द पिविट नोड, उनको हम बफर कर लेते हैं जब तक नया पाथ हम इस्टेब्लिश नहीं कर देते। इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी ट्रांसमिशंस, जो टाइमर्स हैं फॉर द बफर्ड पैकेट एट द सेंडर एंड इन द इंटरमीडिएट नोड्स, दे यूजेस टाइम आउट वैल्यूज़, और ये जो टाइम आउट वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअली बेस्ड हैं ऑन द राउंड ट्रिप टाइम, RTT जिसको हम कहते हैं। ओके, जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं बिटवीन द सेंडर एंड द पिविट नोड, ये एक्चुअली दे विल रिक्वेस्ट द सेंडर टू सेलेक्टिवली रिट्रांसमिट एनी ऑफ द लॉस्ट पैकेट। सो अगर कोई पैकेट ड्यूरिंग ट्रांजिट, जिस तरह मैं बताया, कोई लॉस्ट कर जाते हैं, सो सेंडर को हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको रिट्रांसमिट करें। और जब कोई पाथ ब्रेक हम डिटेक्ट करते हैं तो इसमें जो डाउन स्ट्रीम वाला नोड है, यानी जब पाथ ब्रेक होता है तो उस ब्रेक पाथ या उस लिंक के दोनों तरफ पे नोड्स हैं, तो जो राइट साइड पे नोड होगा दूसरी साइड पे, उसको हम डाउन स्ट्रीम नोड कहते हैं। वो भी एक मैसेज जनरेट करता है जिसको हम रूट नोटिफिकेशन पैकेट कहते हैं, और ये पैकेट रिसीव होता है। रिसीव कौन करता है इसको? रिसीवर जो है वो रिसीव करता है। तो ये मैसेज हम फॉरवर्ड करते हैं टू ऑल द डाउन स्ट्रीम नोड्स इन द पाथ, ताकि ये रिसीवर पे तक पहुंच जाए। इसके अलावा जो ERDN पैकेट है जिसको हम प्रोपेगेट करते हैं टूवर्ड द सेंडर, उसको हम रिलायबल वे में जो है वो रिलायबिलिटी उसकी भी हमें चाहिए, ताकि अगर किसी वजह से ये ERDN का पैकेट लॉस कर जाए तो किस तरह हम उस लॉस को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस प्रोटोकॉल की डिटेल्स फिर आप इसको ख़ुद देख लें, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आज मैंने बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली जो है वो लेक्चर डिलीवर किया है विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। सो आप इसको फिर देख लें। इसकी ऑपरेशन बिल्कुल सेम है जस्ट लाइक द प्रीवियस अप्रोचेस, बट नोमेनक्लेचर डिफरेंट है। जो इंटरमीडिएट नोड जिसको हम पिविट नोड कहते हैं, वो पिविट नोड जो है ये कोशिश करता है कि किसी तरह से न्यू रूट को इस्टब्लिश किया जाए टूवर्ड द रिसीवर, और उसकी जो अवेलेबिलिटी है it actually will depend on certain factors. So जो मैसेजेस हम यूज़ करते हैं अवेलेबिलिटी के लिए, ERSN वगैरह, उसको ये यूज़ करता है। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि चूँकि ये ABR प्रोटोकॉल पे बेस हैं, तो उसके जो ABR प्रोटोकॉल के जो हमारे पास कुछ स्पेशल पैकेट्स हैं, LQ एंड रिप्लाई, उनको ये यूज़ करता है in a modified form
to solve the issues of the root re-establishment या refinding. सो उन पैकेट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उसको यूज़ कर रहा है इन इट्स ओन वे. इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इस प्रोटोकॉल की यहाँ पे मेंशन है. सोर्स नोड हमारे पास 1 है और डेस्टिनेशन नोड हमारे पास 15 है. यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोज आप देख सकते हैं. एक तो ये लिंक्स हैं जो डॉटेड नेट्स लिंक्स हैं जो कि नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं. दे आर कॉल्ड द नेटवर्क लिंक. एक आपके पास ब्रोकन लिंक है जस्ट इन केस 4 और 12 के दरमियान जो लिंक है नेटवर्क लिंक, वो इस केस में हमारे पास ब्रेक है. सो उसको रिप्रेजेंट किया गया है विद अ क्रॉस ऑन द डॉटेड लाइन. फिर हमारे पास एक टीसीपी फ्लो है. सो द टीसीपी सेशन इज़ बिटवीन नोड 1 एंड 15. सो द फ्लो इज़ बिटवीन 1 एंड 15. सो ये जो आपके पास सॉलिड एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टीसीपी के फ्लो को, राइट. सो दिस इज़ लाइक द टीसीपी फ्लो. तो लेजेंड में आप देख सकते हैं दिस इज द टीसीपी फ्लो. इसके अलावा जो ERDN का मैंने आपको बताया कि जब कोई लिंक ब्रेक कर जाए, सो जो आपके पास पिवट नोड है PN नोड, वो क्या करेगा, सोर्स को नोटिफाई करेगा. सो जो आपको डैश एरो नज़र आ रहा है ये एक्चुअली नोटिफिकेशन है, सोर्स को हम नोटिफाई कर रहे हैं. और इसके अलावा जो RN है दैट इज़ टूवर्ड द रिसीवर, तो वो भी आप देख सकते हैं. वो हमारे पास डैश डॉट लाइन है. तो यहाँ पे आप देखें डैश डॉट लाइन is a notification towards the destinations. So we have dash dot lines here. यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश डॉट लाइन्स. इसके अलावा जो प्रोटोकॉल के ABR प्रोटोकॉल के जो मैसेजेस हैं LQ एंड रिप्लाई, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है. एंड दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट द पिवट नोड. सो जब कोई लिंक ब्रेक कर जाए सो हम सेंड करते हैं मैसेजेस टू द some messages to the source, some messages to the destination, and then we try to establish an alternative route, which in this case goes from 4 to 8, then 13, and then 15, and here you can see that. So इसको फिर आप देख लें. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑलमोस्ट द सेम. सब का फोकस यही है कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए TCP की. सो द फर्स्ट एडवांटेज इज़ इम्प्रूवमेंट इन थ्रूपुट परफॉर्मेंस. सेकंड इज़ के यूजेस ऑफ बफर, चूँकि ये बफर्स को भी यूज़ करता है. एंड अनलाइक द प्रीवियस प्रोटोकॉल ये सीक्वेंस नंबर्स को भी यूज़ करता है, ये सेलेक्टेड एक्नॉलेजमेंट को भी यूज़ करता है इन ऑर्डर टू अवॉइड फास्ट रिट्रांसमिशन जो कि नॉर्मल TCP करता है व्हेन इट रिसीव डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट. इसके अलावा टेक एडवांटेज ऑफ द रूटिंग प्रोटोकॉल ABR, तो उसका भी इसको फ़ायदा है क्योंकि वो एक वेल मैच्योर्ड प्रोटोकॉल है और ये उसके मैसेजेस कंट्रोल मैसेजेस को यूज़ कर रहा है फॉर इट्स ओन यूज़. तो ये भी इसका एक प्लस है. लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं कि इसकी डिपेंडेंसी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस प्रोटोकॉल ऑन द रूटिंग प्रोटोकॉल वो बहुत ज़्यादा है. और इसकी जो बफरिंग कैपेसिटी है, जो बफरिंग कैपेबिलिटीज़, जो बफरिंग हैं एट द इंटरमीडिएट नोड्स, वो बहुत ज़्यादा है. इसके अलावा अगर जैसा हमने प्रीवियस में देखा कि अगर इंटरमीडिएट नोड्स फेल कर जाएं, सो जो आपके बफर्ड पैकेट्स हैं उन नोड्स पे दे विल आल्सो लॉस, और फिर आपको उसको रीट्रांसमिट करना होगा. और अगर आप रीट्रांसमिट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होगी. इसके अलावा ये डिपेंडेंसी ऑन वन हैंड इट इज़ एन एडवांटेज कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं उनके कंट्रोल मैसेजेस को. बट ऑन द अदर हैंड दिस डिपेंडेंसी इज़ अ डिसएडवांटेज बिकॉज इट कैन आल्सो डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रूटिंग प्रोटोकॉल जिसके साथ ये कंपेटेबल नहीं है. ओके, लास्ट जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ एक्चुअली अदर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, यानी ये सेकेंड कैटेगरी का प्रोटोकॉल है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो नाम है वो ATP है. यहाँ पे T के बाद C नहीं है, विच मीन कि ये TCP पे बेस्ड नहीं है. दिस इज़ लाइक अ नोवल प्रोटोकॉल जो कि हमने डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली फॉर एड हॉक नेटवर्क. और ये वही प्रोटोकॉल है जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अदर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर मानेट, और ये TCP का वेरिएंट नहीं है. इसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये कोऑर्डिनेशन एमंग मल्टीपल लेयर्स को सपोर्ट करता है जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रोटोकॉल. रेट बेस्ड अप्रोच को ये फॉलो करता है. इसके अलावा कंजेशन कंट्रोल और रिलायबिलिटी को पिछले प्रोटोकॉल्स की तरह ये भी सेपरेटली डील करता है. इसके लिए दोनों मैकेनिज़्म अलग अलग है. कंजेशन कंट्रोल जो है वो लोकल मैकेनिज़्म है, रिलायबिलिटी इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. और इसके अलावा असिस्टेड कंजेशन कंट्रोल है. Okay, similar to other variant
of MANET, ATP uses services from the नेटवर्क एंड मैक लेयर. जल्दी से इसको मैं पढ़ लेता हूँ. नेटवर्क और मैक लेयर की सर्विसेज को ये यूज़ करता है, उस पर बेस करता है. इसके अलावा जो है इसमें लेट मी सी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग इसको असाइनमेंट में कर चुके हैं, सो आई एम श्योर दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू गो टू द थ्योरी वंस अगेन विच इज़ मेंशन्ड हियर. ओके, फिर आप इसको खुद पढ़ लें. दिस इज़ सिंपल. Advantages and disadvantages: improve performance just like other protocol. ये congestion control और reliability mechanism को decouple करता है just like other protocols. ये congestion window fluctuation को avoid करता है. This is something new. ATP जो है it does not maintain any per flow state at the intermediate nodes. The congestion information is gathered directly from the nodes that experience it. While on the other side इसका जो main disadvantage है दैट इज़ इंटरऑपरेबिलिटी विद TCP. चूँकि ये TCP का वेरिएंट नहीं है, ये TCP की कैटेगरी का प्रोटोकॉल नहीं है. इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, सो उसके साथ इसकी कंपेटेबिलिटी नहीं है. और TCP आपको पता है दैट इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. तो ये जो इंटरऑपरेबिलिटी, लेक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी है, दिस इज़ ड्रॉबैक फॉर द ATP प्रोटोकॉल. इसके अलावा फॉर लार्ज मोबाइल एड हॉक नेटवर्क it will become a bottleneck. Scalability is a problem if it is used for large scale mobile ad hoc network, specifically जहाँ पे resources constraints हैं, तो वहाँ पे एक bottleneck scalability के लिए बन सकता है. Okay, if you want to read more about ATP protocol, here is the paper for you. अगर आप इस पेपर को पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं. अगर आप नहीं पढ़ना चाहें तो एटलीस्ट आप इस प्रोटोकॉल को जो है वो अपने असाइनमेंट से या यहाँ से ज़रूर जो है वो प्रिपेयर करें फॉर एग्जामिनेशन. सो इट वाज अबाउट टुडे लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स को डिटेल के साथ स्टडी किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.